Good evening, all my dear life member of IA Thane branch and other participant of Thakur College of Science and Commerce and Smile School College. Indeed, it's really great pleasure. Since 1 week, we are enjoying our research methodology workshop. Today, being the last session of research methodology workshop, we have our resource person, Dr. Poonam Thakkar. She is known to all of us being the coordinator of accounting and finance BMS, but I don't know how many of you are knowing. She's also having the experience to coordinating BMM. So she has a vast administrative experience of coordinating all three courses since years together. She is also there as University OSM coordinating team along with us for online assessment. And she has a vast experience of not only admin teaching but also research. She has presented several papers. She has got her PhD from University of Mumbai under guidance of Dr. Madhu Nair sir. So now we will welcome her without wasting your time so much for this valuable session. Ma'am, over to you. थैंक यू तो स्क्रीन और दिख रही है और am I audible? Both are fine. Nishikant sir? Perfectly all right, ma'am. Perfectly all right. Great. Okay. So good evening, everybody. Honorable Luhar sir, Nishikant sir, and dear participants. Well, this is the last day of research methodology workshop. और एक चीज मैं कह रहा हूँ, हाँ जी, वॉइस में डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा है. वॉइस में डिस्टरबेंस है. It may be due to the fan which you are using. एक सेकेंड सर. अभी नहीं आ रहा है. Now it's not coming. No, voice is not there. निशिकांत देखो जरा. हेलो. हाँ निशिकांत, दिस इज फाइन. यस मैम. तो सर शुरू करते हैं फिर. अच्छा निशिकांत, तुमको वॉइस में डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर. वो क्या वो विदाउट माइक यूज कर रही है ना, तो वो सांस भी लेंगे तो वो स्पीकर. अच्छा ठीक है. ठीक है. ओके फिर. ओके सर. ओके मैम, यू कंटिन्यू प्लीज. थैंक यू. So I believe the best is kept for the last. Well, आज के सेशन में I will not consider myself as a resource person. लेकिन आज हम as a peer learning जो बोलते हैं, friend to friend learning, which is considered to be one of the best learnings, we will be having a learning in that way. और आज का I believe अब तक जो हमारी जर्नी रही है ये वर्कशॉप के लिए, it's been amazing, it's been enriching for everybody. And well, I'll try my best to give you a best takeaway from this last day of the session. आज का एजेंडा हमारा है जो हम पढ़ने वाले हैं. It's all about how are we going to have interpretation written. हमें इंटरप्रिटेशन कैसे लिखना है. एक बार हमारा डेटा कलेक्ट हो गया उसके बाद हमें लिखना है. We are going to learn about what is different types of research papers. बेसिकली रिसर्च पेपर लिखना कैसे है. रिसर्च पेपर ही नहीं, एक डेजिटेशन हो या थीसिस हो. हाउ आर वी सपोज टू राइट डाउन अ थीसिस और डेजिटेशन. वेल, ये टाइम हम ये भी जानेंगे कि हम जब ये डेजिटेशन या थीसिस लिख रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट प्रॉब्लम्स दैट अ रिसर्च स्कॉलर में कम अक्रॉस. एंड आई विल श्योरली शेयर यू सम टिप्स के हाउ कैन यू रिजॉल्व सच प्रॉब्लम्स व्हेन यू आर राइटिंग योर थीसिस और राइटिंग अ बेसिक पेपर टू सबमिट इन एनी ऑफ द जर्नल्स. तो हमारी जर्नी शुरू होती है व्हाट इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन. अब मुझे ऐसा टॉपिक दिया गया है कि मैडम आपको इंटरप्रिटेशन के बारे में बोलना है और सिखाना है. तो ये ऐसी एक कहानी है जो सिखाई नहीं जा सकती. डेटा एनालिसिस एक बार सिखाया जा सकता है, SPSS सिखाया जा सकता है, उसका ऑपरेटिंग कैसा सिखाया जा सकता है, हाउ टू मेजर द वेरिएबल्स सिखाए जा सकते हैं. लेकिन अगर मुझे बोला जाए कि इंटरप्रिटेशन सिखाओ, then it is very difficult because it is something which is known as self learning.
फिर भी I'll try my best to come out and touch upon this important aspect of writing a thesis or writing a paper, because ultimately इंटरप्रिटेशन ही पढ़ के लोग को समझ में आएगा कि आप अपने पेपर में क्या बोलना चाहते हैं। तो इंटरप्रिटेशन पहले देख लेते हैं कि कौन से स्टेज ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या आता है। निशिकांत सर, आपको एक मदद करनी पड़ेगी हमको, आपको चैट बॉक्स खोलना पड़ेगा। एक बार हम ऑडियंस से पूछेंगे कि अब तक के रिसर्च जर्नी में क्या उन्हें पता चला है कि ये इंटरप्रिटेशन कौन से स्टेज पे आता है। So is this visible to us where I'm saying कि yes sir, चैट बॉक्स ऑन है, सबका चैट देख सकते हो, पॉप इन वहीं पे आएगा मैम चैट बॉक्स, जैसे जूम। चलिए ठीक है, तो पहले ऑडियंस से हम ये जान लेते हैं कि हाउ फार दे आर थॉरो विद दिस इंटरप्रिटेशन कम्स एट व्हाट स्टेज। सो कैन वी हैव सम आंसर्स? चैट बॉक्स ऑन है तो कैन आई सी व्हाट माय ऑडियंस हैव टू से? Yes, chat box on hai. Yes, it started after data analysis. Daksha madam says. Anybody else? After data analysis. Very good. Vinayak sir. Pooja madam also says after data analysis. Yes, so it is very obvious that it comes after data analysis. This is basically a path of data analysis. जब हमारा डेटा हमारे हाथ में आ जाता है, ये हमारा रॉ डेटा है। This raw data will be either collected from primary or secondary source. Once the data is there in our hand, definitely this data is raw. We directly cannot be using this data to interpret it. तो इसलिए we'll have to follow the procedure of data analysis. और एनालिसिस में क्या करते हैं, तो कुछ डेटा हमारे हाथ में ऐसे आए होंगे सर्वे के टाइम कि यहाँ पे उन्होंने आधा क्वेश्चनर फिलअप किया है, कुछ ने कुछ 2 बार टिक मार्क कर लिया है, कुछ ने तो फॉर्म फिलअप किए बिना ही वापस दे दिया है। सो देयर यू फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कि यहाँ पे एडिटिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसको बोलते हैं डेटा माइनिंग। एडिटिंग इट इज डन ईदर ऑन द फील्ड और इट इज डन कॉन्फिडेंशियली। So I will omit all the errors which are seen in the data and go on to the next stage, वो है कोडिंग। अब कोडिंग हम सबको पता है कि we give, जब हमारा रॉ डेटा हाथ में आ गया है एडिटिंग होने के बाद, we will have to give some kind of coding, either it could be in number or it could be in alphabet or a combination of both। क्योंकि कोडिंग होने के बाद we'll go to the next stage, it's all about we'll be entering the data। डेटा एंटर होने के बाद वी विल बी गिविंग देम कोडिंग, और फिर हम क्लासिफिकेशन करेंगे डिपेंडिंग अपॉन योर वेरिएबल्स क्या है, डेमोग्राफी क्या है, इज इट अकॉर्डिंग टू योर एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, जो आपका टाइटल है उस हिसाब से आप अपना क्लासिफिकेशन भी करके रखेंगे। अब टैबुलेशन भी हो गया, मतलब आपका डेटा प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। वंस यू हैव अप्लाइड योर टेस्ट एंड योर डेटा इज आउट, तो आपको कुछ डेटा दिखेगा which is called or which is seen as, I'll just show you. Yes, कुछ डेटा आपका प्रोसेस होके ऐसा दिखेगा। Now this is something very some may see this, कोई ये देख पाएंगे तो यहाँ पे समझ में आएगा ये सब नंबर्स है, and it is sometimes for a layman very difficult to understand कि नंबर्स क्या बोल रहे हैं। So it is the role of the researcher to make a layman understand what basically these numbers are talking. So I have to convert this number into a paragraph or a theory. This paragraph or theory is called as interpretation. The number what you see here, when I convert these numbers into a theory, that is called as interpretation. तो आज के सेशन में हम पार्टली ये बात करने वाले हैं कि इंटरप्रिटेशन हमें लिखना कैसे है, which looks favorable to the reader who is trying to understand my paper or my thesis. इसके बाद इंटरप्रिटेशन में ये अगर हमने कोई टेस्ट लगाया है, ये हमने chi-square टेस्ट लगाया था, इसका भी इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, we'll be having once a glance. So that's how, as I told you, interpretation is basically converting the numeric data into theory, and it is done after data processing, data analysis. अब मैं
आपको ये टेबल के हिसाब से ये एग्जाम्पल दिया है, एंड दिस एग्जाम्पल इज ऑल अबाउट हाउ यू गोइंग टू राइट द इंटरप्रिटेशन। एक बात हमें जरूर याद रखनी है कि ROL जो बोलते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये हमारा आखिर दम तक पीछा नहीं छोड़ेगा। गाइड के साथ बैठ के हमने अपना चैप्टर स्कीम डिसाइड किया। चैप्टर स्कीम में गाइड ने बताया रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर नंबर 2 या चैप्टर नंबर 3 डालो, लेकिन चैप्टर नंबर 3 होने के बाद ये चैप्टर क्लोज नहीं होता है। ROL रिव्यू ऑफ लिटरेचर की कहानी, हमारी थीसिस, जब तक हम फाइनल कंक्लूजन नहीं लिखते हैं, सजेशन नहीं लिखते, तब तक हमको ROL की जरूरत पड़ेगी। और स्पेशली इंटरप्रिटेशन में तो पहले हमारा काम होगा ROL का। अब जब आप ये स्लाइड देखेंगे, आई हैव ट्राइड एंड एक्सप्लेन हियर कमिंस डिफाइंड सेलिब्रिटी। अब ये टेबल क्या बोल रहा था, पहले ये बोल देती हूँ मैं आपको। मैं ये जानना चाहती थी टेबल में कि जब गारमेंट्स परचेस किए जाते हैं, क्या सेलिब्रिटी का इन्फ्लुएंस होता है व्हेन एनीबडी इज मेकिंग अ बाइंग डिसीजन टू बाय रेडीमेड गारमेंट्स, वो लोकल ब्रांड हो, नेशनल ब्रांड हो या इंटरनेशनल ब्रांड हो। लेकिन क्या सेलिब्रिटी का रोल होता है इन्फ्लुएंस होने में, उनके बाइंग डिसीजन में? दैट वाज ए काइंड ऑफ ए क्वेश्चन which I had given to my survey and I had data processed it. अब यहाँ पे रिजल्ट मुझे आए हैं, जो मेरा टेबल बता रहा है वो बोल रहा है कि इंटरनेशनल ब्रांड के लिए सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस होती है, लेकिन जो लोकल ब्रांड होता है उसके लिए सेलिब्रिटी की कोई जरूरत नहीं होती है। दे डोंट इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू बाय रेडीमेड गारमेंट्स, जो मेरा पहले का टेबल बता रहा है इन नंबर्स। नाउ दिस थिंग आई हैव टू पुट इट इनटू वर्ड्स। तो डायरेक्टली मैंने टेबल जो बोल रहा है वो शुरू नहीं किया है, मैंने अपने ROL यहाँ पे रिफ्लेक्ट किया है। जो मैं बोल रही हूँ 1989 में कमिंस से बताया था कि सेलिब्रिटी आर द इंडिविजुअल्स वो वेल नोन टू पब्लिश फॉर देयर एडवर्टाइजमेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पहले ये बताया कि किसी ने बताया है कि सेलिब्रिटी हैज सम रोल फॉर एंडोर्समेंट ऑफ द प्रोडक्ट। अब जो रेड लाइन देख रहे हो, मैंने वहां पे भी यहाँ पे लिखा है, past research indicates that celebrities exert influence on consumer purchase decision। मार्टिन सर और बुश ने 2000 में बताया था उनके पेपर में celebrity does exert some influence. So here you see I'm using my ROL to explain what people have। देखिए, ओहानिया ने भी बताया था 1991 में कि सेलिब्रिटी हैव आल्सो बीन फाउंड टू एनहांस परस्यूएसिव ऑफ मैसेज। मतलब यहाँ पे मैं एम्फसाइज करके बोल रही हूँ कि कहीं पेपर ने बताया है कि सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस होती है। सो दिस इज व्हाट आई हैव पिक्ड अप फ्रॉम माय ROL। अब ये लोगों ने बताया है अपने पास रिसर्च में। नेक्स्ट पैराग्राफ में आई से कि मेरा डेटा क्या बोल रहा है। कैन आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? Now you see here in the next paragraph I talk about what my data is telling। रेड लाइन में आप ऊपर के पैराग्राफ में देखेंगे तो मैंने लिखा है कि मेरा डेटा कलेक्ट हुआ है 1000 रिस्पोंडेंट से विच वे कॉलेज गोइंग यूथ। और फिर मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स दिखाया है। 5.2% से स्ट्रांगली अग्री that celebrity has influence, 26% says that they show an agreement where they influence, 27% say they do not agree with celebrity influence। तो ये मेरा आखिर का टेबल जो लास्ट रो है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है पैराग्राफ में कि मेरे डिजिट क्या बोल रहे हैं। अगर आप चाहो तो मैं वापस पहले के यस, सो आई हैव पिक्ड अप दिस डेटा फ्रॉम हियर। 26% says agree, disagree says 27%। ये जो मेरा टेबल बोल रहा है ये मैंने आपको बताया है मेरे इवैल्यूएशन में, ठीक है। अब सभी लोग ने बताया है कि इन्फ्लुएंस तो होता है, लेकिन मेरा डेटा 27% बोल रहा है कि नहीं होता है। वी डू नॉट हैव सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस ऑन आवर बाइंग डिसीजन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि लोग तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन मेरा डेटा बोल रहा है कि यहाँ पे टू ग्रेट एक्सटेंट इन्फ्लुएंस तो मार्जिनली नहीं होता है, बहुत वीक है। यहाँ पे जरा भी डरने की बात नहीं होती है। प्लीज रिमेंबर फ्रेंड्स, यू ऑल नो दैट हमारा हाइपोथेसिस हम लेते हैं पास्ट रिव्यू से। हाइपोथेसिस इज एन इमेजिनरी स्टेटमेंट जो हम खुद नहीं बनाते हैं। हाइपोथेसिस हम लेते हैं पास्ट पेपर से।
और हमारा हाइपोथेसिस हम बोल रहे हैं कि सेलिब्रिटी हैज इन्फ्लुएंस। हमारा हाइपोथेसिस पास्ट पेपर बोल रहा है सेलिब्रिटी हैज इन्फ्लुएंस, लेकिन मेरा डेटा बोल रहा है सेलिब्रिटी डज नॉट हैव इन्फ्लुएंस। As a researcher, at the initial stage, you may get confused or you may get a little haphazard, saying कि जो मेरा hypothesis past researchers बोल रहे हैं, लेकिन मेरा data वो support नहीं कर रहा है, तो मैं कहीं में गलत जा रही हूँ? Please don't be in that assumption that you are going wrong. If you fail to reject your null hypothesis, I repeat, if you fail to reject your null hypothesis, ये कहीं पे आप गलत नहीं जा रहे हो, rather आप एक नई दिशा दे रहे हो to a new researcher to start a new study. You are creating a controversial, you are creating a contradiction over the past study which was made, जो बता रहा था कि celebrity का influence होता है, लेकिन आपका डेटा बोल रहा है कि ज्यादा influence नहीं होता है, influence weak है. So here you are saying that finding is not consistent with the previous and earlier findings. जो किसने किया था, जो यहाँ पे स्विचर ने 2000 में किया था. Rather मेरा डेटा बोल रहा है कि weak celebrity का influence है on my buying decision. So this is a new study you are giving, a new ray you are giving, a new scope of study you are giving for further research. So now one thing we learned, कि अगर आपका हाइपोथेसिस null hypothesis, if you fail to reject, I repeat, if you fail to reject, it is nothing wrong in it, rather it is a new direction to the study that you are giving for further scope of research. हम आगे भी पढ़ते हैं. आगे आपने जो टेबल देखा, ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का दिखाया था मैंने आपको. Go ahead. ये बहुत सारे फाइल्स खुले हैं इसलिए थोड़ा हैंग भी हो रहा है. Yes. अब लास्ट टेबल पे देखेंगे तो वो लास्ट टेबल बता रहा है the p value is 0.022 which is less than 0.05. तो यहाँ पे तो हमारा hypothesis clearly it says it is less than the p value which is 0.05. अपना p value यहाँ पे बता रहा है 0.002. तो definitely यहाँ पे we can help to reject our null hypothesis and accept the alternate hypothesis. लेकिन अगर आपका डेटा बोलेगा कि आपका p value is greater than 0.05, then you cannot reject the null hypothesis. तो यहाँ पे you should not be scared. This is what I have said. अब लास्ट लाइन देखिए, यहाँ पे दिखाया है जो मैं हाइपोथेसिस टेस्ट लगाती हूँ, तो ये हाइपोथेसिस टेस्ट के टाइम हमको लिखना कैसे है. It says in order to test the above mentioned hypothesis, chi-star was applied and the result indicates p value is 0.002 which is less than 0.05. This helps to reject the null hypothesis. अगर आपका p value इससे ज्यादा रहा 0.05 से, तो you will not be able to reject the null hypothesis. So you can't write down that I cannot reject null hypothesis. The right word is the researcher fails to reject the null hypothesis. Fails to reject मतलब हम अपना alternate accept नहीं कर पा रहे हैं. तो ये गलत बात नहीं होगी आपके रिसर्च पेपर में. You're giving a new direction. तो यहाँ पे फिर हमने देखा फेल्स टू, यहाँ पे दिखा हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुआ है. एंड वी से देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस एंड बाइंग डिसीजन फॉर रेडीमेड गारमेंट्स. जब इंटरनेशनल ब्रांड बाय करते हैं तब सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंस होता है, जो मेरा टेबल बता रहा है. विच से स्ट्रांगली अग्री 26% हमारा हाँ बोल रहा है जो इंटरनेशनल ब्रांड परचेज करता है. लेकिन जो लोकल ब्रांड परचेज कर रहा है वो बता रहे हैं कि देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ सेलिब्रिटी ओवर इट. विच माई प्रीवियस टेबल आप देखेंगे तो वो नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स आराम से बताएंगे. अब जिसे को वो टेबल समझ में नहीं आया, लेकिन आराम से ये मेरा जो राइटिंग है, द राइटिंग एंड इंटरप्रिटेशन विल इजीली एक्सप्लेन देम व्हाट बेसिकली द रिसर्चर इज ट्राइंग टू कन्वे थ्रू द डेटा व्हिच इज बीइंग प्रोसेस्ड. ऑलराइट, सो दिस इज समथिंग अबाउट इंटरप्रिटेशन. अब इंटरप्रिटेशन में हमें ये चीज याद रखनी है कि योर लैंग्वेज हैज टू बी नॉट सो your language may not be so rich enough when you're trying to explain the data.
So definitely you can take the help of a teacher teaching English to beautify your language. But certainly that teacher who is doing a proofreading and enhancing your language will not understand the statistics and the data what you have explained. So you have to ensure कि ये जो explanations हो रहे हैं, तो स्टेप नंबर 1 आपको पहले ROL से वो टॉपिक और नहीं तो वो वेरिएबल के बारे में ROL ने क्या बताया है वो 2 से 3 लाइन वो बतानी है. एटलीस्ट 2 to 3 ROL आपको वो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि लोगों ने ये बात की है. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में आप बताएंगे कि मेरा डेटा क्या बोल रहा है. दैट एक्सप्लेनेशन यू विल गिव. Next, if you have applied a hypothesis test, your hypothesis test will be your third paragraph. And finally, you will be concluding what suggestion would you like to give to the marketers. Now, it differs from guide to guide and differs from university pattern to pattern. कुछ suggestions वही hypothesis testing के बाद नीचे दिए जाते हैं और कुछ suggestions दिए जाते हैं which is immediate in the suggestion conclusion and suggestion chapter. So you have to sit and discuss with your guide exactly suggestions अगर यहाँ पे 1-2 लाइन में दिए जाता है. So if it is fine with them, you can definitely give a 1-line suggestion as I have given here that the marketer should adopt promotional strategy where the use of celebrity is more in case of international brands. That's what my interpretations have said. So I think this interpretation will give you some idea as to हमें शुरुआत कैसे करनी है, हमारा बीच में का पैराग्राफ कैसे होना चाहिए और हमें अंत कैसे करना है with just 1 or 2 line of suggestions given. Okay. हम पूरे सेशन में, as I said, I am not going to use any research jargons. I will be talking in a very layman's language. I will be talking in a very simplified language. So entire session will be learning. लोगों की गलती से हम सीखेंगे. जो लोगों ने गलती की है वो गलती हमें नहीं करनी है, यहां से हमें सीख लेनी है. अब लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पे? When I say लोग, I'm talking about research scholars. What they do is they look out for somebody who will analyze the data for them. ये गलत बात नहीं है. If you take a help of a statistician to do your data processing, there is nothing wrong in it. But here comes the next expectation. The next expectation is I want somebody who will not only analyze the data for me, but also do the data analysis for me, data interpretation for me. अब जब इंटरप्रिटेशन की बात आ रही है, अगर आप किसी से एक्सपेक्ट करके ले रहे हो कि somebody will write down the explanation, you tell me as a research scholar, how will you understand that what is your data spoken? So it is very important that you have to learn कि data interpretation कैसे करना है. पूरे रिसर्च जर्नी में आपको एक चीज याद रखनी है. आप जो भी स्टेप लेंगे, you always have to remember in your mind, how are you going to defend your work? मुंबई यूनिवर्सिटी में भी ओपन डिफेंस शुरू हो गया है अभी. So whatever decisions you take, may it be on your research design, may your आपका sample पे होगा, आपका questionnaire पे होगा, आपका sample size पे होगा, आपके objectives पे होंगे, it may be on your variables which you have selected. You always have to keep in mind that you have to be answerable. You have to defend your work. और ये defend करने के लिए you can be answerable only when you have done your work. So interpretation has to be done by the research scholar. This is the toughest part of research, I'll tell you. सबसे पहले tough part है कि research topic decide करना. उसमें महीना गुजर जाते हैं. How to decide a research topic? इतना confusion होता है. Rather, that is the right and the best first step of research, state of confusion. This shows कि आपका सोच शुरू तो हुआ research में. तो जब आपकी सोच शुरू हो रही है कि टॉपिक क्या होना चाहिए, वो सबसे बड़ा टफेस्ट काम है. और दूसरा टफ काम आता है, आई एम टेलिंग यू, डेटा तो कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन डेटा इंटरप्रेट करना और लोगों को समझाना तुम्हारा डेटा का काम है, वो रिसर्च स्कॉलर का काम है. सो दिस हैज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू आर डूइंग योर डेटा वर्क. और यहाँ पे आपका जब ये चैप्टर चालू है ना, ये चैप्टर के साथ आपका रिसर्च ROL का रिव्यू ऑफ रिसर्च का चैप्टर इट शुड बी ऑन.
पैरेलली आपको चालू रखना चाहिए, बिकॉज वहीं से आप अपना ROL का टॉपिक्स लेने वाले हो कि कौन से रिसर्चर ने क्या बताया था विच कुड रिलेट टू माई थीसिस। अब ये सब काम होता है व्हेन रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है। मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, इफ यू आर अ बिगिनर, कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर होना कैसे चाहिए। अगर PhD गाइड्स भी ये सेशन में है तो शायद से हम ये एक स्टेप भूल जाते हैं कि जब मेरा रिसर्च स्कॉलर एकदम न्यू है, हम लोग बोलते हैं ROL करके आइए, लेकिन वो बच्चा बेचारा ROL करेगा कैसे। लेट अस टीच देम स्टेप बाय स्टेप हाउ एग्जैक्टली द रिसर्च स्कॉलर हैज टू डू एन ROL आल्सो, व्हिच आई विल बी टीचिंग यू इन द नेक्स्ट अहेड। तो यहाँ पे हमें एक गलती का समझ में आया और हमने सीख ली है। ये गलती है कि डेटा एनालिसिस शुड नॉट बी डन बाय the statistician. Analysis should be done by the researcher himself, taking the help of, there is no harm in taking the help of data analyst. वो हमको समझाएगा, लेकिन लिखना हमें है। ये किसी ने स्क्रीन शेयर किया है, वो प्लीज बंद कर सकते हैं। Okay, so let's go to next slide. Somebody has raised his hand, Vimal Kumar Misri. I think हम क्वेश्चन आंसर राउंड बाद में ले सकते हैं। We will devote around half an hour for this when I talk about question answer round. Continue with the presentation first. Okay, sir, done. And if it is there in the chat, that only to be taken care. Otherwise, you please be in flow of presenting. चलो सर, चलो ओके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमको बोला गया है कि पूनम मैडम थोड़ा रिसर्च थीसिस के बारे में बताइए। अब थीसिस के बारे में हम क्या बताएं? अगर आप एक रिसर्च स्कॉलर हो and if you're trying to take an admission into any of the universities or any of the centers which is affiliated to universities, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप पहले वो यूनिवर्सिटी का पैटर्न देखिए। Every university has got different pattern for their thesis. कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपका हाइपोथेसिस आना चाहिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के चैप्टर में, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपका हाइपोथेसिस आना चाहिए ऑब्जेक्टिव्स के तुरंत बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर में। सो एवरी यूनिवर्सिटी हैज गॉट अ डिफरेंट फॉर्मेट ऑफ थीसिस टू बी सबमिटेड। सो एज अ रिसर्च गाइड, द फर्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू टेल योर स्टूडेंट्स इज गो टू द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी और पहले देखो कि थीसिस कैसे फॉर्मेट में है। They should understand how the format is of the thesis, what is the chapter scheme. थोड़ी आइडिया उनको वहां से आएगी, or else they'll be completely clueless. So when I talk about thesis part, this is what I said, it is the role of the guide to advise the research scholars to go and first check how is the thesis pattern, and it is the role of the research scholar that before they decide the chapter scheme, which is very important. Mumbai University में हम proposal बोलते हैं, दूसरी यूनिवर्सिटीज लाइक नागपुर में जब हम प्रपोजल को लोग सिनॉप्सिस बोलते हैं, तो टर्मिनोलॉजीज में यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिफर होता है। हमारी यूनिवर्सिटी में जब हम प्रपोजल देते हैं वहां पे चैप्टर स्कीम भी मेंशन करना है। तो यहाँ तो प्रिपरेटरी पार्ट देखो रिसर्च स्कॉलर की कि उसको चैप्टर स्कीम ही शुड बी नोइंग टू राइट डाउन इन द प्रपोजल हाउ द फाइनल आउटलुक ऑफ द थीसिस विल लुक लाइक। So it is mandatory that the research guide tells the research scholar, you go to university और अपने की थीसिस जरा जो चार देख के आइए, इसके देख के फिर बोले आई एम कॉन्फिडेंट, हैज टू बी टू द यूनिवर्सिटी, द रिसर्च स्कॉलर इज ट्राइंग टू गेट द डिग्री टू बी अवॉर्डेड। की एक पूरी थीसिस देखनी है, वो एरिया की थीसिस देखनी है कि कहाँ पे और कैसे प्रेजेंट किया है। अब मैं आपके साथ जो रिसर्च के बारे में बात कर, बी इट अ लेमैन, बी इट PhD गाइड और बी इट अ रिसर्च स्कॉलर। 2 दिन पहले मैंने एक सेशन अटेंड किया था DAV में, जो था KU सर का,
आई एम टेलिंग यू दैट सर वाज ब्रिलियंट. जो मैंने उनसे सीखा मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ. तो रिसर्च एक ऐसी चीज है कि वी लर्न बाय शेयरिंग थिंग्स. So this is what I learned from him. Lot of things I picked up from him, which I'll be sharing with you all also. KU sir is an associate professor. I think पूजा रामचंदानी मैडम भी उनको पहचानती होगी. अब उन्होंने अपने सेशंस में जो सिखाया है, which is very valuable, मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाली हूँ कि what exactly is all about research. अच्छा, तो पहले मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछती हूँ. Let's forget about research jargons. Let's forget about research terminologies. But if I ask you कि we all watch Hindi movies, forget Hindi, Hollywood या Bollywood, हम सब मूवीज देखते होंगे. तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे दिमाग में एक नॉवेल आई है जो चेतन भगत ने लिखी है, और ये नॉवेल है हाफ गर्लफ्रेंड. ये नॉवेल का जो है मुझे उस पर पिक्चर बनाना है. तो चेतन भगत जी के साथ परमिशन लेके आई हैव टू कन्वर्ट हिज नॉवेल इनटू अ मूवी. अब ये मूवी बनाने के लिए इफ आई आस्क यू ऑडियंस, ओके, इफ आई आस्क यू ऑडियंस की मूवी बनाने के लिए व्हाट आर ऑल द थिंग्स दैट आई विल हैव टू लुक इन फॉर, कैन आई गेट सम आंसर्स फ्रॉम यू ऑल? कि अगर मुझे एक मूवी बनानी है, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट आई विल हैव टू लुक इनटू इट? सो चैट बॉक्स से हमें कुछ आंसर्स आ सकते हैं. ओके, हरदीप सर बोल रहे रिसोर्सेज चाहिए, विनायक सर स्क्रिप्ट बोल रहे हैं, अमित सर बोल रहे कैरेक्टर्स चाहिए, विनायक सर कास्ट बोल रहे हैं, शिव कुमार सर डायरेक्टर बोल रहे हैं, मधुरी जी बोल रहे हैं कि हमें कैमरामैन चाहिए. सो डिफरेंट पीपल हैव गिवन डिफरेंट आंसर्स. वापस विनायक सर बोल रहे हैं प्रोड्यूसर चाहिए. So these are different things or different characters or different materials or resources that you are telling me we will require to do to make a movie. अश्विन सर बोल रहे हैं मीडिया प्लानिंग होना चाहिए प्रॉपरली. और कोई आंसर्स आ रहे हैं? 200 से 300 लोग लगते हैं पिक्चर बनाने में, और किसका किसका क्या क्या रोल होता है. हमको चाहिए कॉस्ट्यूम डिजाइनर, कोरियोग्राफर, वेरी गुड, परवीन राठौड़ जी ने बताया. हरदीप सर बोला रहे कोरियोग्राफर, यस. और कोई बाकी है पिक्चर बनाने के लिए? एक्शन डायरेक्टर चाहिए. मनी, डेफिनेटली वी नीड फाइनेंस. यस बैंक ऐसा बैंक है कि यशराज को हर पैसे, हर पिक्चर यशराज के यस बैंक देता है. यस बैंक की हालत है वो आप हमसे पूछिए, लेकिन वी नीड अ फाइनेंस सर. यस. तो उमा कुक्कू मैडम बोल रही है डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए. डेफिनेटली आपका पिक्चर का मार्केटिंग कौन करेगा? सो यू नीड अ डिस्ट्रीब्यूटर टू मेक प्रमोशंस ऑफ योर मूवी. So now let's, अभी हम चैट बंद कर सकते हैं. Let us understand what all answers that you are giving me. Okay, let's see. सबसे पहले आपने मुझे बताया कि we need finance. फाइनेंस के बिना हमारी मूवी शुरू ही नहीं हो सकती है. So I note it down as finance. हाँ जी, मैं आपका जरा नॉवेल का नाम लिख लेती हूँ. I repeat again, हमारा नॉवेल का नाम है हाफ गर्लफ्रेंड, और ये नॉवेल की हमें पिक्चर बनानी है. तो ये पिक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपने बोला you need financer. Definitely we need producer, the production house who's going to help us to make the entire movie and gather all the resources. He is the captain of the ship, the director. शुरू से अंत तक ये पूरा पिक्चर बनाने में बड़ा किरदार निभाने वाला है. So it is the captain of the ship, the director, who makes the movie and puts it out into the market. तो आपने डायरेक्टर भी बताया. इसके बाद यस, किसी ने मुझे बताया था एक्टर्स, किसी ने इसको कैरेक्टर्स भी बोले थे. अब एक्टर्स तो कितने सारे होते हैं. अगर मुझे अपना पिक्चर डिसाइड करना है, हाँ, एक्टर डिसाइड करना है कि कौन सा एक्टर मैं लूं मेरे पिक्चर के लिए, तो कौन डिसाइड करेगा ये? एनीबॉडी?
if I have to decide which actor will I take for the movie, who is this decision maker? Who decides which actor? Director. Very good. So Hardeep ji ने बताया कि it is a producer and the director who decides कि I need this character, this actor for my movie. Alright. अब actors कौन कौन से होते हैं friends? तो आपने बताया actor हो सकते हैं hero, दूसरा एक्टर हो सकता है हीरोइन, और हो सकते हैं कॉमेडियन, और भी एक्टर हो सकते हैं विलेन, और भी एक्टर हो सकते हैं सपोर्टिंग एक्टर। मतलब एक्टर्स तो बहुत सारे हो सकते हैं जो डायरेक्टर अपॉइंट करेगा। अब ये बताओ फ्रेंड्स, ये एक्टर डायरेक्टर किस हिसाब से सिलेक्ट करेगा? द डायरेक्टर विल सिलेक्ट द एक्टर ऑन व्हाट बेसिस? एनीबॉडी? I repeat my question. The director will select the actor on what basis? Script. Superb. Hardeep madam ने sir ने बताया यहाँ पे. Yes. So it is acting skills. Somebody said script. The script will decide who is the perfect actor for my picture. कौन से स्क्रिप्ट के हिसाब से कौन सा एक्टर फिट हो रहा है? सुपर। तो अब मेरी स्क्रिप्ट बन गई, स्क्रिप्ट के साथ मेरे एक्टर्स चूज हो गए हैं। अब ये स्क्रिप्ट जो बन रही है किसके लिए बना रही हूं मैं? डेफिनेटली इट इज फॉर द ऑडियंस। माय ऑडियंस विल टेल मी ऑल अबाउट वेदर द मूवी इज हिट और अ फ्लॉप। तो डेफिनेटली आई नीड द ऑडियंस। ये सभी के साथ नेवर फॉरगेट, आपने जो भी चीज बताई मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आपने बताया द कॉस्ट्यूम डायरेक्टर, किसी ने बताया म्यूजिक डायरेक्टर, किसी ने बताया कोरियोग्राफर, किसी ने बताया डबिंग आर्टिस्ट, किसी ने बताया एक्शन डायरेक्टर, किसी ने बताया लाइट मैन, कैमरा मैन। ये सभी की जरूरत पड़ेगी हमें एक पूरा पिक्चर बनाने के लिए। ये सबको गैदर होने के बाद क्या बनने वाले दोस्त? आपकी बनेगी मूवी, और ये मूवी आपकी ऑडियंस बताएंगे ये हिट है या फ्लॉप है। अब आप ये बताओ, व्हेन विल आई से द मूवी इज हिट? हाउ विल आई से द मूवी इज हिट? डायरेक्टर कब बताएगा? बॉक्स ऑफिस। वेरी गुड, हरदीप सिंह ने बताया कि बॉक्स ऑफिस बताएगा मूवी इज हिट और फ्लॉप। एनी अदर थिंग? कलेक्शन। अगर मैं कलेक्शन बोल रही हूँ, आप बोल रहे हो प्रॉफिट। राजकुमार सर बोल रहे हैं इट इज द प्रॉफिट विच विल टेल यू वेदर योर मूवी इज अ हिट और अ फ्लॉप। योर टाइम स्पैन विल टेल यू आपके बॉक्स ऑफिस में मूवी कितने टाइम तक चली। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं प्रॉफिट ना बोलूं, अगर आप अपना हाफ गर्लफ्रेंड की नॉवेल की आइडिया पिक्चर में उतार पाए और लोगों को समझ में आया, तो आप बोलेंगे आपकी पिक्चर हिट है। If people have understood the concept of half girlfriend novel, the picture what you have made. लेकिन अगर की कहानी आए तो वहां जाके ऑडियंस बोलेगी इट इज अ फ्लॉप, तो डायरेक्टर बोलेगा कैसे ऑडियंस से समझ नहीं पा रहे हैं, दे कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज आई एम ट्राइंग टू से। अब यहाँ की बात आती है क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक्स भी बोलेगा पिक्चर ने कितना काम किया है, क्या काम किया है, लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। अल्टीमेटली क्रिटिक्स आपको एज ए डायरेक्टर नहीं लेकिन मूवी को क्रिटिसाइज कर रहा है। रिमेंबर वन थिंग, so here when I say the movie is flop, the director never gets upset. It is actually वो थोड़ा बहुत upset होगा, okay, पर it is उनके लिए ये loss, actually it is his work, the movie is a flop, so he should not be disappointed for this. अब ये पूरी कहानी जो मैंने आपके सामने पेश की है, पिक्चर कैसे बनाना, it is all related to research thesis. एक पूरी थीसिस कैसे बनती है, यहाँ पे हम गलती कहाँ पे करते हैं, लेट्स लर्न दैट। चलिए हम रिवर्स जाते हैं।
मैंने आपको बताया हमारी मूवी थीसिस है, ये थीसिस लोग देखेंगे और ये थीसिस पे people will either appreciate or people will find out some critical aspects into it. So your thesis will be accepted or will be rejected. That will be spoken. ये thesis बनाएंगे कैसे आप? Your movie किससे बनती है? Director आपका, it is you. It is you who have said the captain of the entire academic research that you have made your research happen. आपको किस डायरेक्शन में जाना है, आपको कौन सा काम करना है, डेटा कहाँ से गैदर करना है, फाइनल डिसीजन आपका होगा एज अ रिसर्च स्कॉलर. लेकिन आपको कोई अगर गाइड करेगा कि कैसे करना है, तो बॉस ये आपका प्रोड्यूसर है जो आपको गाइड करेगा. हु इज योर गाइड? रिमेंबर वन थिंग, अगर थीसिस में डेटा कलेक्शन में डेटा एनालिसिस कहीं पे अटकते हो, यू कैन नॉट पुट इट ऑन योर गाइड कि दिस वाज नॉट टोल्ड टू मी बाय माय गाइड. It is sure the work of the research scholar to understand the thesis pattern and understand the flow, how it has to go through review of literature. The work of the guide is just hold your hand and take you to the steps. The director will plays a role of just कि कैसे चलना है, लेकिन चाल तो आपको चलनी है. अब आगे देखो, फाइनेंसर इज नथिंग एल्स बट आपका आरआरसी. इट इज द आरआरसी हु विल डिसाइड आपका टॉपिक अप्रूव हो रहा है तब जाकर आप रजिस्टर कर पाएंगे. तो जैसे फाइनेंसर इतना क्रूशियल है, हमारे लिए आरआरसी इतना क्रूशियल है. एवरी कैरेक्टर आई एम शोइंग यू, इट इज इक्विवेलेंट एंड इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अ रिसर्च थीसिस. लुक फ्रेंड्स, दैट इज व्हाट यू आर सीइंग. ये हमारी नॉवेल थी. Now I'm talking about my actors. आपने बताया था एक्टर अपॉइंट करता है डायरेक्टर. डायरेक्टर कौन हो? आप हो. As a research scholar, you have to decide the actor. Actor means variable. आपने वेरिएबल्स के बारे में जान लिया था पहले के सेशंस में. निशिकांत सर ने, कुलदीप सर ने आपको सिखा दिया था व्हाट आर वेरिएबल्स. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू इट अगेन. लेकिन अगर आप बोलो तो एक बार मैं वेरिएबल्स बता दूंगी. ये वेरिएबल्स कौन से है भाई? 5 टाइप के वेरिएबल्स हैं. डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल वेरिएबल, मीडिएटर, मॉडरेटर. ये कहानी पूरी पिक्चर की आपकी एक्टर्स के साथ चलती है. तो आपको एज अ रिसर्च स्कॉलर याद रखना है कि अगर पिक्चर बनाना है, थीसिस बनाना है, सबसे पहला काम, द एंटायर मूवी, एंटायर थीसिस इज बेस्ड ऑन योर एक्टर्स, योर वेरिएबल्स. अब जब ये डायरेक्टर, आपने बताया था डायरेक्टर सिलेक्ट करता है एक्टर को, करेक्ट? अब डायरेक्टर के पास तो कितने ऑप्शंस है, कितने ऑप्शंस है. अगर मुझे एक पिक्चर बनानी, मेरे पास माधुरी दीक्षित है, मेरे पास दिव्या भट्ट है, यू नेम द हीरोइंस एंड आई हैव सो मेनी हीरोइंस. व्हिच हीरोइन टू सिलेक्ट? इन शॉर्ट, अगर आप थीसिस में बात करो तो आपके पास वेरिएबल्स कितने रहेंगे? अगर मैं बोल रही हूँ स्ट्रेस, अब स्ट्रेस क्यों होता है, तो कितने सारे, व्हाट आर द रीजंस फॉर स्ट्रेस? You could say stress could be due to hypertension. Stress could be due to lack of confidence. Stress could be due to, मतलब tell me how many variables, factors you are finding. What could be the reason for stress? और ये आपको कहाँ से मिल रहे हैं सब फैक्टर्स? आपके दिमाग से नहीं, आपने कहीं पे पढ़ा होगा. तो ये पढ़ाने का मतलब क्या बोल रही हूँ, आपकी स्क्रिप्ट. आपने मुझे पहले बताया था ना एक्टर कहाँ से ढूंढते हैं, तो आपने बताया मैडम एक्टर हम फाइनलाइज करते हैं स्क्रिप्ट से. तो यहाँ पे स्क्रिप्ट मेरी है, मेरी देखो, ये मैं बोल रही थी हीरो, हीरोइन, करेक्ट, कॉमेडियन, विलेन, ये आपके वेरिएबल्स रहेंगी जो आप शॉर्टलिस्ट करोगे. देखने जाओ तो बहुत सारे रहते हैं. और हमने बोला था प्रीवियस में कि ये एक्टर डिसाइड होता है स्क्रिप्ट से. स्क्रिप्ट इज योर ROL. सो माय प्लीज रिमेंबर, आपकी पूरी कहानी में आपके वेरिएबल्स प्ले अ फैंटास्टिक रोल. पूरे थीसिस में आप इनकी
डांस करना है, terms of reasons for stress, you will not consider all thousands, you will consider 4 से 5 ये आपके वेरिएबल हुए, लेकिन ये thousands आपको कहां से मिले? आपकी स्क्रिप्ट, आपकी ROL से. So you as a director, you as a research scholar will take the variables from ROL कि मुझे कौन से variables के साथ पूरी अपनी thesis बनानी है. So once you decide your variable, 4 to 5 variables that you're going to study, you will then start hunting on those research papers with that 4 variables or 5 variables that you are shortlisting to have your research to be played. Your audience is your data. The data what you collect. पहले हम secondary data देखते हैं. Definitely you can go ahead with a research paper which is primary, secondary database. लेकिन अगर हमें survey based करना है primary data, so your data will help you to understand what your variables are saying, how your actors are actually going to act upon and give you the final result. So your data will tell you how is your variables talking in your thesis. The audience will say actor कैसा था ultimately, and everybody is interested into your study what your variables are talking. So mind you, when you're making a thesis or when you're making a research paper, everybody is interested in the variables that you have selected and what additional value are you giving in the paper by adding some more variables. क्या आपने नए variables ढूंढे हैं आपके पेपर में, तब जाके आपकी कहानी अच्छी लगती है और ये सिलेक्ट होती है. अब ये सिलेक्शन प्रोसीजर भी कैसे होता है हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ तक आपको पता चला कि यहाँ पे दोनों गाइड का भी इम्पोर्टेंट रोल है और रिसर्च स्कॉलर का भी इम्पोर्टेंट रोल है पूरे थीसिस बनाने में. यस, ये बाकी के लोग हैं, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, म्यूजिक डायरेक्टर, डबिंग आर्टिस्ट, ये सब प्लीज रिमेंबर आपके थीसिस बनाने में आप अकेले नहीं हो. People say don't discuss about your topic to anybody. That is right. Your guide says do not talk about your topic till the time you are registered. That is very true. क्योंकि आपका टाइटल अगर आप किसी के साथ डिस्कस करते हो, भाई आपका आरआरसी में अप्रूवल होने से पहले किसी और का हो जाएगा अप्रूव, फिर आप वो टॉपिक नहीं ले पाएंगे. So that is why guides always say keep the topic to yourself till the time it is officially been approved and you get registered. Once you are registered, you have to take help of different people to complete your thesis. It is not a one-man show. तो thesis complete करने के लिए आप किसकी help लेंगे? Librarian की help लेंगे. You will take the help of your guide. You will take the help of definitely statisticians. You will also take the help of your audiences, respondents. You're going to answer it. So you will take the help of a person who's going to do proofreading for your paper. You're going to take the help of the people who are going to print your thesis. Every people will play an important role to come at the final stage of making your thesis. अब गलती कहाँ पे करते हैं? हमारा पूरा लेक्चर होने वाला है कैसे we will learn from people's mistake. लोग गलती क्या करते हैं? लोग टाइटल बनाने में गलती करते हैं. बस जब हम as a candidate, research scholar भी नहीं, as a candidate when I'm going to appear for my interview पे बहुत धुरंधर होते हैं who are already established people in research. वो लोग आपका प्रपोजल खोल के ज्यादा नहीं देखेंगे. आपका प्रपोजल बंद ही रहेगा टेबल पे ऑन द इंटरव्यू टेबल. वो सिर्फ आपका टाइटल देखेंगे और टाइटल के हिसाब से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उधर के उधर ही पूछेंगे. So your title has to be so attractive and meaningful that the people or person does not have to look inside what exactly you're trying to talk about. Your title should have variables shown. It should have dependent and independent variables shown. तब जाके आप जब इंटरव्यू देने जाएंगे as a candidate, it will be shortlisted as to what exactly you want to study. और ये टाइटल बनाने के टाइम you will have to sit with somebody or you have to see your past research papers. लोग गलती कहाँ पे करते हैं? टाइटल बनाने में ही. जब टाइटल ही अब्सर्ड होता है, क्लैरिटी नहीं होती कि उनको क्या पढ़ना है.
क्लैरिटी नहीं होती कि उनको कौन से वेरिएबल्स टेस्ट करने हैं और स्टडी करने हैं अपने रिसर्च में। तो हमको अपने जो फ्यूचर रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं पहले उनको ये क्वेश्चन पूछने का, आपके वेरिएबल्स क्या है, तो फिर उनको पता चलेगा ये क्या कहानी, ये गाइड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मुझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए, हाउ आर यू गोइंग टू मेजर योर वेरिएबल। If the guide asks this question, you are giving a sense of direction to the research scholar. What is the expectation from the research scholar? तब रिसर्च स्कॉलर को पता चलेगा कि ये वेरिएबल क्या है। भाई वो पहला पूछना करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी गाइड ये पूछ रही है वेरिएबल क्या है, कैसे मेजर करोगे, भाई मुझे ये पूछ रहे हैं, इसमें डिपेंडेंट कौन है, इंडिपेंडेंट कौन है, मुझे ये सब पूछा जा रहा है। तब जाके वो भागेगा आरओएल करने के लिए। तब उसको समझ में आएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ROL मेकिंग योर थीसिस एंड मेकिंग द टाइटल ऑफ योर पेपर। सो आई थिंक हाउ टू मेक अ टाइटल, वो भी मुझे पूरा एक सेशन चाहिए जहां आपको सिखा सकती हूँ कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे हम स्ट्रक्चर करके कांस्टेंट लेके हाउ कैन वी स्ट्रक्चर ए टाइटल। अगर मुझे चांस दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम, तो वी विल बी लर्निंग एज अ गाइड और एज अ रिसर्च स्कॉलर हाउ कैन वी स्ट्रक्चर ए टाइटल फॉर द पेपर। फिलहाल तो हम वापस यहाँ पे आ जाते हैं ये कहानी पे। तो गलती हमारी होती है पहले रिसर्च पे, दूसरी गलती होती है थीसिस बनाने के टाइम। यहाँ पे मेरा रिसर्च स्कॉलर जो गलती करता है, इट्स ऑल अबाउट कट कॉपी पेस्ट। हार्डली एफर्ट्स आर टेकन अपनी थीसिस अपने वर्ड्स में लिखने के। देयर इज नो हार्म इन कॉपिंग somebody, but there is always a harm if you copy somebody without taking their permission. We cannot have any copying done, especially ये world of research में, when you are trying to put your research papers into big journals like Wickard, Sage, Emerald. बॉस ये फॉरेन कंट्रीज वाले कैनेडियन यूनिवर्सिटीज की जो स्कूपर्स की जर्नल्स है, वहां पे आप थोड़े भी कट कॉपी पेस्ट करके डालोगे, अब केयूर सर ने भी बताया था ये, आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। ब्लैक लिस्ट करना मतलब प्लेगरिज्म चेक तो पहले करते हैं। So if you get blacklisted, you will be nowhere into the picture. You'll be allowed to submit your paper in any of the journals to get published. So first most thing when you're making your thesis, chapter wise proofreading के लिए डालो। End में wait मत करो। अगर आपने कुछ कॉपी भी किया होगा तो डेफिनेटली देयर इज वन वे, हम सिनोनिमस वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो प्लेगरिज्म रिपोर्ट अगर 60% बता रहा है, वो थीसिस तो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। व्हाट इज ओरिजिनलिटी? लेकिन अगर प्रूफ रीडिंग के साथ हम सिनोनिमस वर्ड्स डाल के वी कैन रिड्यूस इट टू 30%, यूनिवर्सिटी 25% एक्सेप्ट करती है। आपका इसके ज्यादा प्लेगरिज्म नहीं होना चाहिए, और अगर प्लेगरिज्म में पकड़े गए देन योर करियर इज एंड इन रिसर्च। तो बेसिकली आई हैव बीन आस्क्ड टू टीच यू हाउ टू राइट पेपर, तो आई विल बी ओनली टीचिंग यू आपको कहां से क्या पढ़ना है और कैसे लिखना है। बाकी की चीज आपको ही करनी है। यू विल ओनली हैव टू हैव सेल्फ डिसिप्लिन इन रीडिंग। अब लोग मुझे मेरे पास आके बोलते हैं, मैडम आप बोल रहे हो रीडिंग रीडिंग रीडिंग, मैंने 100 रिसर्च पेपर्स पढ़ लिए, अब मुझे इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज एवरी रिसर्च पेपर आई एम फाइंडिंग सुपर्ब। तो ऐसा मेरा स्टूडेंट मेरे पास आके बोलता है, अब मैं क्या करूं, मैंने तो 100 पेपर पढ़ लिए हैं, अब ये ROL का क्या करूं। So in my next slide, I will be teaching you what you should basically do with your ROL. ये कहानी हमारी खत्म हुई कि research thesis में how everything is playing an important role and how the actors which are called as variable play an important role in making of your title. I hope you enjoyed this example also. ये आगे जाएगा या चलिए, ये मैंने सिर्फ एक यस मैम, थैंक यू निशिकांत सर। ओके, अब हमें आई जस्ट टेक वन टेस्ट फ्रॉम यू ऑल सो एज टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर अवेयर अबाउट वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है। जरा एक बार एक नजर मैं भी डाल लेती हूँ, सो आई कैन अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड हाउ इन डेप्थ आई शुड गो टू मेक माई टुडे सेशन मोर इंटरेस्टिंग, और हाउ टेक्निकल आई शुड गो। जरा देख लेते हैं। मैंने बताया है
poor performance of the students in college entrance exams. अब performance of students ये एक variable itself है. Performance of the students keeps varying. Variable क्या होते हैं? Which keeps varying, which keeps changing. इसीलिए लोगों को इसमें इंटरेस्ट ज्यादा होता है कि आज की तारीख में अगर ये वेरिएबल ऐसा है, फ्यूचर में ये क्या चेंजेस बताएगा. आज के टाइम में क्लाइमेट ऐसा है, वेरिएबल है, कल फ्यूचर में कैसा होगा ये. आज के टाइम में कंज्यूमर ऐसा बिहेवियर कर रहा है, कल उसका बिहेवियर कैसा होगा ये डिसीजन पे. I want to know what is the behavior, which is a variable which keeps changing, and that is why people are more interested to study about this. कि हर एक फैक्टर पे ये variables कैसे react करते हैं. This is what I want to study, and people are more interested into. So if I ask you, friends, performance of students is one of the variables. जो डिपेंड करता है किस पे? What do you think performance of students will depend upon? अगर एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस पुअर हो गया है, तो व्हाट डू यू थिंक कुड बी द रीजंस फॉर दिस पुअर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स? मार्क्स, बच्चों ने स्टडी टाइम बहुत कम टाइम दिया था, रोशनी मैडम बोल रही है, ओके, तो पुअर परफॉर्मेंस इज बिकॉज इन द एंट्रेंस एग्जाम क्योंकि probably time span was given very less. Any other reason as to? अच्छा, मधुर जी बोल रहे हैं कि it is because basically उन्होंने attend नहीं किया थे sessions. That is why the performance went poor. All thing, anything else? हरदीप बता रहे हैं कि it is the understanding, lack of subject understanding की वजह से they could not perform well. Very good. Lack of knowledge about the syllabus. That is why the student could not perform well. Very good. नॉन अवेलेबिलिटी, करेक्ट. नॉलेज, मेरे पास अमित तिवारी सर बोल रहे हैं कि नॉन अवेलेबिलिटी, नॉलेज नहीं है. सो नाउ व्हाट यू आर टेलिंग मी इज डिटरमिनेशन नहीं था. वेरी गुड. पल्लवी इज सेइंग देयर वाज नो डिटरमिनेशन फॉर स्टूडेंट्स एंड दैट इज व्हाई दे परफॉर्म लेस. नाउ राइटिंग स्किल्स नहीं थी. वेरी गुड. आई थिंक आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ वंडरफुल आंसर्स हियर. Okay, so now let us understand lack of practice. Amit Tiwari, thank you so much. Yes, अब आपने ये जो मुझे बताए हैं, no oriented, not oriented, students were not oriented. Yes, रितु जी ने बताया ये. So you told me various reasons as to why a student performed poor. ये आपने जो reasons बताए हैं ना, ये रीजंस भी एक वेरिएबल है जिसकी वजह से मेरा परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट वेंट पुअर. The poor performance is dependent on these factors, all what you told me. Entrance exam score marks कम मिले, टाइम डिवोटेड, स्पैन स्टूडेंट ने कम टाइम दिया, स्टूडेंट टीचर रेशियो किसी ने बताया था? कोई ने बताया कि टीचर स्टूडेंट एक है और 100 बच्चे. Lack of attendance. I cannot be attentive to every student. Number of students in the class also. Maybe इसीलिए बच्चे आते नहीं है. Lack of attendance बहुत हो रहा है. There could be multiple reasons. Multiple reasons. दोस्त, अब ये जो मैं बता रही हूँ ये आपके वेरिएबल्स है, और ये जो रेड में दिख रहे हैं ना, ये आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है जो इन्फ्लुएंस करता है आपके परफॉर्मेंस को. डिपेंडेंट वेरिएबल, माय परफॉर्मेंस इज अफेक्टेड बाय ऑल दीज फैक्टर्स. दिस इज हाउ आई हैव टू टीच माय रिसर्च स्कॉलर कि बॉस तुझे ये ढूंढना है कि तुम्हारा डिपेंडेंट फैक्टर कौन सा है, इंडिपेंडेंट कौन सा है, तुम कौन से एक्टर्स के साथ खेलने वाले हो तुम्हारे पिक्चर में. So once if the research scholar is confident, मैम मेरे 4 एक्टर है, इसमें से ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, अब यहाँ से कहानी शुरू होगी. You will then be happy to see that your research scholar has exactly understood what you are asking for. So here we understood which is independent and dependent variable. I think this is और एक जाते हैं आगे, हमारा लोड होने में थोड़ा टाइम कर रहा है. ये मैंने आपको और एक एग्जाम्पल दिया था. ये एग्जाम्पल इज ऑल अबाउट फॉल इन सेल्स.
तो दिस इज अगेन क्वेश्चन आस्क कि सेल्स क्यों फॉल होता है. सो यू गिव मी वेरियस रीजंस. क्योंकि प्रोडक्शन डिजाइन शायद से गलत हो, प्राइसिंग गलत हो सकती है, इनएडिक्वेट प्रमोशन हो सकते हैं, probably you could also say wrong placement of the product ही हो गई, इसलिए आपका सेल्स कम हो रहा है. टारगेट ऑडियंस ही गलत प्रोडक्ट गलत जन को गया है. आई कैन नॉट गिव च्यूइंग गम टू अ पर्सन हु इज वेयरिंग डेंचर्स. So that is the reason the sales of my chewing gum is falling down. So I have to have the right audience for the right product. So this is one of the factors. शायद से आपकी कॉम्पिटिटर के सामने आपकी जो स्ट्रैटेजी थी इट वाज इनकॉम्पिटेंट. यू डिड नॉट हैव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर इट. ये जो रेड में है ये आपके फैक्टर्स है which will influence the reasons for fall in sales. So your fall in sales is because of these factors. So this becomes sales falls क्यों हुआ? This becomes your dependent variable और ये सब independent variable है जो influence कर सकता है आप sales पे fall और rise. So this is how we will have to first explain to our students all about variables, and I think now my audience knows about it. Okay. Now let us understand कि यहाँ तक हम थीसिस तक तो पहुंचे. हमको कैसे सी आई एम टॉकिंग इन अ वेरी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज फ्रेंड्स. आई एम नॉट टॉकिंग रिसर्च जार्गन्स. शायद आपको लगेगा ये कैसी बात कर रही है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द लेवल ऑफ द researcher who is trying to become a research scholar, the candidate, we will have to at the initial stage get down to this level to make them understand. Once thesis के बारे में खत्म होता है, फिर will take a higher jump on how to write research papers जो हमें पब्लिश करने स्टेज में मिराल में वो कहानी एक स्टेप के बाद में लेती. तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं. तो हमारी गलती यही होती है कि people are not understanding about variables, they are not identifying variables, or rather they are not understanding which variable to shortlist. They are not understanding कि thousands of variables में से मैं कौन से 4 से 5 के 7 के 8 वेरिएबल लूं. कभी कभी रिसर्च स्कॉलर 15 से 20 वेरिएबल के साथ खेलता है, तब जाके रिसर्च गाइड की यहाँ पे रोल शुरू होता है. द रिसर्च गाइड हैज टू से द रिसर्च स्कॉलर इतने वेरिएबल्स मत लो, you will not be able to handle your movie, your thesis. Stick to some variables which is sufficient. You can mention all the variables in your ROL, but you say we are dealing precisely with these 4 variables. यहाँ जाके आपका conceptual model बनता है. ROL चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 जो भी आपका रिसर्च गाइड बता रहे हैं, नहीं तो आपका यूनिवर्सिटी बता रहा है पैटर्न जो होना चाहिए थीसिस में. तो ROL में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है आपका मॉडल बनना चाहिए. ये मॉडल बनता है वेरिएबल से, बिकॉज इन दैट मॉडल यू आर एक्सप्लेनिंग ये रिलेशन क्या है हर एक वेरिएबल के साथ. ईच वेरिएबल इज रिलेटेड हाउ टू अनदर वेरिएबल. ये मॉडल आप कर सकते हो ओनली आफ्टर यू आर रीडिंग रिसर्च पेपर्स. ROL करने के बाद आपने अपने 5 वेरिएबल 6 वेरिएबल उठाए और वो वेरिएबल कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है वो आप अपने मॉडल में बताएंगे, which is known as conceptual framework. So this is how my research scholar will understand कि conceptual framework होता क्या है. Now ये conceptual framework के साथ आप नीचे बताएंगे कि इतना वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं और ये सब वेरिएबल्स पढ़े हैं ये पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के साथ. मुझे ये चेक करना है कि ये वेरिएबल्स मेरे टारगेट ऑडियंस के लिए सिमिलर रिएक्ट कर रहे हैं. Are they behaving in the same manner? If yes, if no, I want to study that. वहां से आपका शुरू होगा रिसर्च गैप. हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती ये करते हैं, आप देखो हम कैसे लिखते हैं रिसर्च गैप. We write down as lot of study has been made over this topic, but no study has been made in Mumbai, and hence I want to study this topic. Maximum of the research scholar write it down like this. अरे बाबा, रिसर्च गैप इज नॉट अबाउट स्टडी बिहार में हुआ है और मुंबई में नहीं हुआ है. रिसर्च गैप इज ऑल अबाउट ये वेरिएबल्स पढ़े हैं लेकिन ये वेरिएबल के ज्यादा रिलेशंस के बारे में बात नहीं की है जो मुझे पढ़ना है मेरे थीसिस में विद माय वेरिएबल्स. This is how your model of your study will be out.
मैंने 2 चीज आपको बताई, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसे होता है, गैप एनालिसिस कैसे नीचे आएगा, और उसके बाद मॉडल ऑफ योर स्टडी आएगा, विच यू विल से दीज आर माय, देखो मॉडल ऑफ द स्टडी ये सब मैंने सब मटेरियल निशिकांत सर को दिए हैं. ही विल बी डेफिनेटली पासिंग यू ऑन ऑल द पेपर्स which is one model frame, which is one conceptual base, which you can see how the models have been created. क्योंकि वो सिखाने के लिए मेरे पास ये 2 घंटे का टाइम is very less for me. How to create, how to by variable and create a conceptual framework. WhatsApp group, all the material. Okay sir. Okay sir. Okay. ठीक है, तो उसके बारे में कैसे रिसर्च कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना, तो आई थिंक आफ्टर दिस सेशन इफ आई हैव सम मोर टाइम तो हम लोग देखेंगे एक मेरा पेपर के साथ जो मैंने आपको दिया है, विच इज ऑल अबाउट मिस्ट्री शॉपिंग. मैंने कोई यहाँ पे डेटा कलेक्ट नहीं किया था, इट वाज नॉट अ प्राइमरी डेटा, सर्वे बेस्ड नहीं था, इट वाज कंप्लीटली अ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर. वो कॉन्सेप्ट पे मैंने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई किए और मैंने बताया कि मिस्ट्री शॉपिंग का इम्पोर्टेंस क्या होता है. अभी मिस्ट्री शॉपिंग होता क्या है, इट इज वन ऑफ द रिसर्च टूल्स दैट ऑर्गेनाइजेशन यूजेस. मार्केटिंग में बहुत इम्पोर्टेंट है. बेसिकली अगर मुझे सर्विस क्वालिटी जाननी है, मेरा सेल्स पर्सोनल है, मेरे पर्सनल सेलर है, मेरे कस्टमर्स को कैसे वो डिलाइट करते हैं, आर दे गिविंग गुड सर्विसेज टू माय कस्टमर्स, दिस इज ओनली पॉसिबल टू स्टडी थ्रू मिस्ट्री शॉपिंग. मतलब आई अपॉइंट समबडी एज अ मिस्ट्री शॉपर. मिस्ट्री किसी को पता नहीं है कि ये कुछ एक हिडन पर्पस के लिए आया है यहाँ पे शॉपिंग करने. सो दैट पर्सन इज कस्टमर होता है, उसको अपॉइंट किया जाता है एज ए मिस्ट्री शॉपर. वो आके शॉप में आके शॉपिंग करेगा, बट ही विल मेक अ लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. वो ऑब्जर्वेशन करेगा है, या वो ऑब्जर्वेशन करेगा प्रोडक्ट कैसे डिस्प्ले हुए है, वो ऑब्जर्वेशन करेगा यहाँ पे होर्डिंग्स कैसे लगाए हैं, यहाँ पे हाउ आर द प्रमोशंस बीन मेड, हाउ इज द सर्विस क्वालिटी हियर. So where he will make all this observation, he will also make some shopping. After the shopping, he will be confidently taken into a room and list of questions will be given to him. This list of questions he will have to answer all upon on the service quality what he enjoyed. ये उनका जो feedback रहता है, this feedback is analyzed and then given to the particular organization कि आपकी सर्विस क्वालिटी कैसी है एंड व्हाट इज कस्टमर्स ओपिनियन अबाउट इट. दिस एंटायर मेथड इज कॉल्ड एज मिस्ट्री शॉपिंग. तो मैंने यहाँ पे एक स्टडी की थी, बहुत, दिस इज अ वेरी वेरी न्यू टॉपिक व्हिच इज कमिंग अप अबाउट मिस्ट्री शॉपिंग. तो यहाँ पे मैंने सिर्फ कॉन्सेप्चुअल स्टडी किया था कि मिस्ट्री शॉपिंग में अपार्ट फ्रॉम वेरियस फैक्टर्स एक सर्विस क्वालिटी भी होता है विच एक्चुअली मेक्स लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन क्रिएटिंग अ ब्रांड इमेज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. टाइम मिला तो वो पेपर भी आपको बताऊंगी. चलिए अब यहाँ से कुछ शुरू होता है जो हमने केयूर सर से भी सीखा था, जो हमें बहुत मीनिंगफुल लगा था, जो आपके साथ हम शेयर करने वाले. अब मुझे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक मुझे बताया गया है, पूनम मैडम आपको थोड़ा बात कीजिए कि हाउ टू राइट अ रिसर्च पेपर. अब रिसर्च पेपर बहुत अलग टाइप के हो सकते हैं. एक तो रिव्यू बेस्ड पेपर होता है, कोई रिसर्च पेपर होता है सर्वे बेस्ड, कोई रिसर्च पेपर होता है केस स्टडी बेस्ड, कुछ पेपर होता है कॉन्सेप्चुअल बेस्ड. तो एज ए रिसर्च स्कॉलर नहीं तो एज अ रिसर्चर फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ पेपर यू वांट टू राइट. अगर आप देखेंगे सिम्बायोसिस, अगर आप देखेंगे IIM, अगर आप देखेंगे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर आप देखेंगे कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट, ये सभी अगर अपना कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नहीं तो अपनी जर्नल्स निकाल रहे हैं, दे से केस स्टडीज आर आल्सो इनवाइटेड. अब केस स्टडी मतलब क्या, हम जो अंडर ग्रेजुएट बच्चों लोग को सिखाते हैं वो ऐसे एक छोटा केस स्टडी नहीं होता है. केस स्टडी बहुत ही एक इन डेप्थ स्टडी, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इंसिडेंट नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं तो इवेंट के बारे में आप पढ़ के उसका पूरा डेटा कलेक्ट करके यू आर प्रेजेंटिंग एंड यू आर गिविंग अ फ्यूचर इम्पैक्ट एंड यू आर गिविंग योर ऑब्जर्वेशंस एंड यू आर गिविंग सजेशंस ओवर इट. केस स्टडी भी एक टाइप ऑफ रिसर्च पेपर है जो कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है कि ये विकल्प जैसी जर्नल, ये सेज जैसी जर्नल, ये मैनेजमेंट जर्नल जो इंडिया में है बहुत सारी है. यू शुड एक्चुअली डाउनलोड इट एंड सी व्हाट आर द वेरियस इंडियन मैनेजमेंट जर्नल्स. अकाउंटेंसी भी बहुत सारे जर्नल्स है. यू शुड फर्स्ट नो कि इंडियन जर्नल्स कौन सी है.
then you should think about let's publish a paper in foreign journals, let's give a try first in Indian journals. तो जर्नल में अगर कौन से भी जर्नल में आपको पेपर पब्लिश करना है, वी विल नाउ बी टॉकिंग कि हमारी सोचने की दिशा कैसी होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप. आर यू ऑल विथ मी एवरीबॉडी? कैन आई हैव सम रिस्पॉन्स फ्रॉम द चैट कि वेदर यू अंडरस्टैंडिंग द सेशन? बहुत बेसिक जा रही हूं मैं. आर यू ऑल फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग? ग्रेट गोइंग हरदीप, थैंक यू. यस थैंक यू. सो व्हाट इज द टाइम? इट इज 7 o'clock. आधा घंटा बाकी है मेरे पास शुरू करने के लिए. यस मैम, थैंक यू. नाउ वी हैव टू सी अपॉन हाउ शुड यू राइट अ रिसर्च पेपर. अभी वो पेपर आपको भले ही यहाँ पे कोई छोटी सी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश करना हो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल, या ये पेपर आपको पब्लिश करना हो इंडियन जर्नल में, या ये पेपर आपको पब्लिश करना हो फॉरेन जर्नल में, फॉर्मेट तो एक ही होता है, बट आपकी सोचने की जो तरीका होता है, जो लोग यहाँ पे गलती करते हैं हम वहां से सीखते हैं. When we make a research paper, we never think from the point of view that your research paper has to be हम बोलते हैं ना, इसका relevance क्या है, what is the value you are adding to your research paper. The value what you add. I ask people why you're doing research. Few of them say एक डिग्री चाहिए, few of them say रिसर्च करना है क्योंकि कैश के लिए चाहिए, few of them say रिसर्च कर रहे हैं क्योंकि मेरी फ्रेंड कर रही है तो मैं भी कर रही हूँ. बट nobody have said मुझे रिसर्च करना है ताकि I can contribute something in the society, ताकि I can contribute something to the industry, ताकि I can contribute something towards the government making policy. तो पहले तो आपकी सोच ये बदलनी है कि आप रिसर्च एक पॉइंट के लिए नहीं कर रहे हो, नॉट फॉर गेनिंग पॉइंट्स. एज अ रिसर्चर वो एथिक्स आप में आने चाहिए कि आई वांट टू डू माय रिसर्च बिकॉज आई वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग इन द सोसाइटी एंड बेनिफिट टू द रीडर्स हु आर गोइंग टू रीड माय थीसिस इन सम इंडस्ट्री और इन गवर्नमेंट मेकिंग पॉलिसी. जब आप ये सोच से शुरू करेंगे तब आप अपना पेपर एक बेहतरीन रेलेवेंस के साथ लिख पाएंगे, और ये रेलेवेंस आपको जबरदस्त लिखना है आपके एब्स्ट्रैक्ट में ही. When you talk about I have presented my paper in IIM Kolkata, I presented my paper in IIM Ahmedabad, IIM Bangalore, और वहां की जो सोच है, वहां का जो प्रेजेंटेशन तरीका है, it is just worth experiencing. Boss, we pay money to publish papers. Why do we pay money? पैसे देने की क्यों जरूरत है? Why can't we have free publications done? Emerald don't charge any money. आपका पेपर उतना वैल्यू एडिशन होना चाहिए that industry will say कि इसका पेटेंट बनाओ and we will pay you money for it. एक छोटी सी कहानी बता रही हूँ. It's all about your thinking. Research is not difficult, friends. It's all logical reasoning. एक छोटा सा बच्चा था, एक डैडी थे, daddy and father poor, they lost their mother in recent time. Father is into printing and packaging business. Hand to mouth पे वो लोग अपना जिंदगी गुजार रहे हैं. ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अभी डैडी को बिजनेस नहीं मिल रहा है. उनको एक बिजनेस एक दिन, so they were really looking out for some opportunity where they could get some business. कहाँ पे जाके एक क्लिक हुआ, डैडी को एक बिजनेस मिला. ऑर्डर आया 2000 प्रोडक्ट को पैकेज करके, दिवाली का सीजन था, किसी फॉर्म्स में डिलीवर करना है. टाइम दिया 2 दिन का. अब डैड वाज लाइक ना नहीं बोल सकता हूं मैं, कुछ तो हाथ में आया है, लेट अस डू इट. फादर एंड चाइल्ड एक्सेप्टेड द ऑर्डर. I repeat, 2000 products to be packed and sent to the firm for delivery within 2 days. उन्होंने अपने रिसोर्सेज सब अरेंज कर लिए, गिफ्ट पेपर कर लिया, प्रोडक्ट्स उनके घर पे आ गए थे, स्टेपलर, रिबन्स, डेकोरेटिव आर्टिकल सब रेडी कर लिया. अब 2 दिन में उनका पैकेजिंग काम शुरू हुआ, मैन्युअल. ओके, they didn't have any machines to do all beautiful packing. Manual.
पैकेजिंग के टाइम व्हाट वाज सीन, उनकी जो स्पीड थी वो एक्सेलरेट नहीं हो रही थी, कभी कभी बीच में स्पीड इट वाज गेटिंग वाज क्रिएटिंग अ हर्डल क्या था, वो जो स्टेपलर पिन यूज कर रहे थे वो कभी कभी कम यू नो व्हेन इट गेट्स ओवर यू अगेन हैव टू रिमूव द स्टेपलर पिन, पुट द स्टेपलर पिन के अंदर पिन डालो, फिर वह स्टेबलाइजेशन करो, दैट वाज टेकिंग अवे द टाइम which was deteriorating and putting down their speed for packaging the product. The child observed this कि बार बार यू नो ये 20 पिन के बाद स्टेपलर की पिन फिनिश हो रही है, ये कोई इंडिकेशन कुछ ऐसा होना चाहिए था। बच्चे के दिमाग में एक आइडिया आई, वो डैड को बोलते why didn't we have a stapler which could have colorful pins and that pins could let us know that this is orange, green and red. Red means last 3 pins are remaining, make arrangement for your resources, keep the next stapler pin ready. Superb. All about idea, what comes in your head. Stapler pin which is colorful red, मतलब you could start using orange means you're a fag end, red last 3 pins remaining. ये आज के दिन में ये बच्चे ने पेटेंट कर लिया है, तो हमारा रिसर्च पेपर भी ऐसा होना चाहिए, छोटी सी चीज हो सकती है, आपकी सोच पे है। Anybody has thought about dog food? So it's all about idea कि कभी भी ऐसे निकल सकता है कि डॉग फूड के टिफिन निकल सकते हैं, लेकिन किसी ने ये सोचा। अब टाटा ने, इफ यू रतन टाटा की टाइम, लास्ट टाइम की रिसेंट स्टोरी थी इफ यू रिमेम्बर, उसके ही ऑफिस में देयर वाज अ स्मॉल बॉय हु वाज वर्किंग एंड ही केम आउट विद अ कॉन्सेप्ट, स्ट्रे डॉग्स होते हैं जो रोड एक्सीडेंट्स बहुत करते हैं, हाउ कैन आई सेव दिस स्ट्रे डॉग्स। ये स्ट्रे डॉग्स को रोड एक्सीडेंट से बचाने के लिए वो लड़के ने ही केम आउट विद अ रेडिएंट बेल्ट, जो स्ट्रे डॉग से गले में डालेंगे, which during that time the belt will shine so the driver can come to know there is something on the road. such a ये कितनी मामूली सी चीज है, लेकिन किसी ने सोची नहीं थी। आज इसके लिए ये बच्चे को रतन टाटा ने इतने प्रेसेस दिए, इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए ये बेल्ट बनाने के लिए, एंड टुडे इज मेकिंग मनी ऑन दिस। आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड दिस आर्टिकल आल्सो। ये बस अभी रीसेंट पास्ट की कहानी है। सो ऑल व्हाट आई वांट टू से इज कमिंग बैक टू द पेपर कि जब आप अपना रिसर्च बनाते हैं, टाइटल सोचते हैं, यू हैव टू थिंक फ्रॉम 3 dimensions and the 3 dimensions are your industry, government and society. Your paper should contribute good towards the society. आगे बढ़ते हैं। अब हम जो मैंने आगे लिखा है that it is all about your paper should be going into big journals, your paper should have H index, your paper should be into careless journals, इतना सारा हम सुन रहे हैं, ABCD journals। तो ये H index और IH10 ये सब होता क्या है? बस गूगल स्कॉलर में रजिस्टर करो अपना पेपर, आप जो ऑनलाइन रिसर्च जर्नल में जाते हो, केयरलेस जर्नल, वंस यू गेट ऑटोमेटिकली रजिस्टर टू गूगल स्कॉलर, ये आपका पेपर अगर ऑनलाइन है ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट करता है। citation means अगर दूसरा कोई ऑथर आपका पेपर देख रहा है, citation मिलती है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी अगर इफ यू वांट टू गेट इट इनटू असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, नहीं तो डीनशिप के लिए अगर आप इफ यू ट्राइंग समवेयर, इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, नहीं तो आईआईएम के लिए आप ट्राई कर रहे हो टू बी अ प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी, तो आपको पहले ये पूछा जाता है कि शो मी द साइटेशंस ऑफ योर पेपर। तो ये साइटेशन मींस व्हाट, हाउ मच ऑफ एच इंडेक्स यू हैव गॉट, शो अस द केस स्टडी पेपर्स दैट यू हैव पब्लिश्ड। These are the questions that they will ask in the interview. So this is a picture I'm showing which nobody has ever seen. Okay, what is citations? Once you register Google Scholar, तो आपको ऐसा दिखेगा Google Scholar आपके नाम, आप अपने कॉलेज के डोमेन से, नहीं तो आपके इंडिविजुअल डोमेन से, you can have your citations here. मैंने अब तक जो भी पेपर्स पब्लिश किए हैं वो यहाँ पे इंक्लूड ऑटोमेटिकली होते हैं, because I have come up with this command here कि please accept all the papers which are shown online into various journals. Now यहाँ पे आप देख रहे हो ये बता रहे हैं citation. साइट करना मतलब किसी और ने पेपर बताया, दिखाया मेरे, फिलीपींस से देखा था किसी ने मेरा पेपर, तो ये पेपर के बारे में तो अभी नहीं बताऊंगी बिकॉज वी हैव लेस ऑफ टाइम, लेकिन ये आपको मैं पिक्चर बता रही हूँ। देखो ये साइटेशन पे अगर मैं क्लिक करूंगी तो यहाँ पे दिखा रहा है एच इंडेक्स। आई एम स्टिल अ बिगिनर, लेकिन शुरुआत तो कर दी। ये कैसे की है बेसिक लेवल से आपको बता रही हूं मैं। हाउ डिड आई कम अप विद द पेपर वेयर आई गॉट साइटेशंस एंड वेयर आई गॉट एच इंडेक्स।
दिस इज व्हाट आई ऑलरेडी स्पोक कि रिसर्च पेपर करना, पीएचडी हो चुकी हूं मैं, लेकिन अभी भी मैं गलती कर रही हूं कि मैं अपना रिसर्च पेपर अपने ही डोमेन में लिख रही हूँ। अपना डोमेन मीन्स मेरा डोमेन मार्केटिंग में है, तो मार्केटिंग तो मैं आगे बढ़ ही नहीं रही हूँ। I should make research papers which are interdisciplinary or multidisciplinary. Why can't I research papers which is having a study of philosophy also in coordination, studying two subjects together and making up a paper? इंडस्ट्री में ऐसी डिमांड है कि योर पेपर शुड नॉट बी जस्ट टू वन डोमेन, नॉट ओनली मार्केटिंग, नॉट ओनली जस्ट ब्रांडिंग, नॉट ओनली जस्ट बिहेवियरल फाइनेंस, but it should be multidisciplinary. You can have various disciplines of academic brought to one paper and taught. So this is a thought process that you could give. There is nothing wrong to publish your paper in your own domain. Because you will need this to get from stage 1 to stage 2. असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर से आगे प्रोफेसर होने के लिए, डीन होने के लिए आपको आपके पब्लिकेशंस बताने पड़ेंगे। वहां पे यू विल नीड योर ओन डोमेन एंड मेकिंग इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी। लेकिन अगर आप इफ यू आर एमिंग वेरी हाई, इफ यू वांट टू बिकम वीसी और प्रो वीसी, तो आपको जरूर पूछा जाएगा कि व्हाट इज योर रिसर्च इन इंडस्ट्री कंट्रीब्यूशन। ये हमने सीखा था एग्जैक्टली सेम फ्रॉम केयूर सर कि गलती कहाँ कर रहे रिसर्च है। ये किसी का माइक चालू है, ये प्लीज बंद कर लेना, म्यूट योर माइक प्लीज। So your research should contribute something to the industry. तब जाके आपको copyright, patent और trademark मिलेगा, and this is how you will earn. Okay? केयूर साहब बोल रहे थे कि there is nothing wrong to be selfish. अगर रिसर्च पेपर पब्लिश होने से तुमको नेम, फेम और मनी मिल रहा है, somebody needs to mute them. Nishikant sir, please mute. Yeah. So there is no harm in being a little selfish. When you publish your paper, you should have name, fame, and money. ये money कब आएगा? Not by giving publisher to publish your paper. But money will come when you have something coming up with an idea which you are generated in the market and which is applied by the industry also. Simple example I give you of a stapler pin with that child gave an idea with. Out. So now when you're writing a research problem, these are the 5 questions that should come in your mind. This is how you start thinking when you talk about making a research paper. This is what Keyur sir also had told. मैं आज उनका नाम तो बार-बार ले रही हूँ क्योंकि उनका सेशन ने मुझे बहुत सिखाया जो मैं आपको सिखा रही हूँ अभी। ये उनकी स्लाइड्स भी मैंने ली है, couple of slides to show you. अब सिलेक्शन रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च पेपर, योर यू हैव टू फर्स्ट थिंक कि आपको कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च पेपर करना है। केस स्टडी बेस्ड, एक बढ़िया सा पेपर पूरा मैंने पढ़ा आफ्टर समबडी के यूज्ड टू टोल्ड मी कि ये पेपर पढ़ो। केपीएमजी ने अपना रिसर्च पेपर निकाला था कि कोविड-19 के टाइम पे, ये मटेरियल निशिकांत सर ने भी आपको दिया होगा, पूरा केस स्टडी बेस्ड पेपर है। उन्होंने बताया है पूरा डेटा, उन्होंने कलेक्ट नहीं किया। He did not. The KPMG एक इंडस्ट्री है, तो it means research is not only done by research scholars, even industries does research. तो KPMG जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने एक कंसल्टेंसी कंपनी है, उन्होंने एक रिसर्च किया कि कोविड-19 के टाइम आप सिर्फ हेल्थ के बारे में सोचो मत, हम इंडियन इकोनॉमी की भी हेल्थ देखो, क्या इम्पैक्ट गिरा है एवरी सेक्टर पे। उन्होंने डेटा कलेक्ट किया फ्रॉम वेरियस वेबसाइट्स और हर सेक्टर के बारे में बताया है। अपैरल इंडस्ट्री के बारे में क्या हो रहा है, टेलीकम्युनिकेशन की इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, एवरी इंडस्ट्री इम्पैक्ट क्या हुआ है कोविड-19 का, एंड व्हाट आर रिमार्क दिए हैं, व्हाट केयर कैन बी टेकन अहेड। दिस इज अ केस स्टडी काइंड ऑफ ए पेपर दैट यू कैन राइट डाउन, गिव इन योर ओपिनियन, गिव इन योर सजेशंस कि ऐसे सिचुएशंस में व्हाट कैन बी डन अहेड। दीज आर केस स्टडी टाइप ऑफ पेपर्स। तो पहले एज अ रिसर्चर यू डिसाइड कि तुम्हें
सर्वे बेस्ड पेपर करना है, या यू गोइंग टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स, कि तुम्हें करना है कॉन्सेप्चुअल बेस, कि तुम्हें करना है पेपर केस स्टडी बेस। आई एम टेलिंग यू, केस स्टडी बेस पे पेपर्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पेपर्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। यू शुड मेक एन अटेम्प्ट टू राइट सच काइंड ऑफ पेपर्स वेयर यू डोंट हैव टू रन फॉर कलेक्टिंग डेटा। डेटा आपको वेबसाइट से ही मिल सकता है, लेकिन प्लेगरिज्म चेक के बारे में ऑलवेज रिमेंबर कि यू डोंट डायरेक्टली कॉपी एवरीथिंग फ्रॉम देयर। यू हैव टू इंटरप्रेट इन योर वर्ड्स एंड गिव मीनिंगफुल सजेशंस व्हाट कैन बी डन एंड व्हाट विल द फ्यूचर इम्पैक्ट ओवर अ पर्टिकुलर केस। अब आप लेमन ब्रदर के बारे में बोलो, ये एक केस है, right? So you can talk about this particular industry, what went wrong. Kingfishers, ये case study हो सकता है. Maggi noodles, ये case study हो सकता है. What went wrong? What steps Maggi took? Rather, you could give your suggestions. What could have been the strategy as to Maggi could have taken in the 6 months when it withdrew the product out from the market. So every paper will require logical reasoning, be it be review based, be it be case study based, or be it be survey based. So these are the 5 things that you should come in your mind when you're planning to write a research paper. कि मैं डेटा कैसे कलेक्ट करूंगी, हाउ शुड आई सिलेक्ट द टॉपिक, हाउ आई एम गोइंग टू एनालाइज द डेटा, और फाइनली मैं पब्लिकेशन कहाँ पे करने वाली हूँ। ये सबसे बड़ी चीज है। आप कौन सी जर्नल में पब्लिश करना चाहते हैं, वो पब्लिश करने से पहले आप वो जर्नल का फॉर्मेट देखिए। अगर आप सेज में करना चाहते हैं तो सेज विकल्प में करना चाहते हैं, नहीं तो एमेराल्ड में करना चाहते हैं, नहीं तो एबीसीडी की कौन से भी टॉप 8 जर्नल्स में करना चाहते हो, आपको पहले वो जर्नल का फॉर्मेट देखो बिफोर यू सबमिट योर पेपर, और एज यू बी रेडी फॉर रिजेक्शन। अगर आपने अपना वो पहले सबसे बाद वो देखता है, कौन देखता है, अपना एडिटर देखता है कि ये बंदे ने मेरे जर्नल के फॉर्मेट के हिसाब से पेपर दिया है या नहीं। अगर आपका रिसर्च पेपर वो जर्नल के फॉर्मेट से नहीं है, बात उधर ही खत्म हो जाएगी, रिजेक्टेड। That brings a lot of disappointment in you as a research scholar. तो यहाँ नंबर 1 गलती से हम सीखेंगे कि बिफोर वी पुट आवर पेपर इन सबमिशन, वी शुड गिव इट टू द एडिटर, राइट अ मेल टू द एडिटर or see their journals and ask them to send you the format in which they expect the paper to be. Once you know the format, you then strategize कि ये publication में ये particular format मांग रहे हैं, and then you strategize accordingly how you're going to be your methodology and how you're going to present your paper. This is what I think I already spoke about: conceptual based, case study based, literature based papers, survey based. Maximum of us, maximum of us, फटाफट हम 100 जन से बात करते हैं और हम डेटा एनालाइज करते हैं, 1-2 टेस्ट लगाते हैं और पेपर बना लेते हैं और पब्लिश कर लेते हैं। वो सर्वे मेथड होता है, राइट? But actually speaking, one needs to follow a format, either of the type of paper you do. Now this is what I picked up again from KU Sir, which was very wonderful. He have explained us what is case study method, जो मैंने आपको बहुत सारे examples भी दिए। I will be coming up here first कि हमें जब survey based paper करना है, how can we have a survey based paper presented and how it should be written. याद रखना है, आपका पेपर हो सकता है for 6000 words, या आपका पेपर भी हो सकता है for 1000 words. आपकी थीसिस हो सकती है 150 पेज की, और आपकी थीसिस हो सकती है 500 पेज की। What is important is the content, the material, what you have written in the paper or in the thesis to attract the reader to read your thesis or paper. कौन से भी एडिटर के पास टाइम जरा भी नहीं है कि they read your paper, entire paper. They are more focused on your abstract. आपका एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए such a way that the editor decides to read the paper ahead. अब गलती कहाँ पे करते हैं, हमारी दूसरी सीख, we research scholars write down abstract before the research is conducted. रिसर्च करने से पहले एब्स्ट्रैक्ट लिख लेते हैं हम। अब आपको जानना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट में होता क्या है। एवरीबडी शुड नो, ये पूरा हमारा फॉर्मेट है रिसर्च पेपर का।
abstract, introduction, background, review of literature, methodology, data and result, discussion, conclusion, acknowledgement and reference. अब ये स्ट्रक्चर इज यूनिवर्सल, ये आपको कहीं से भी मिलेगा तो ये स्ट्रक्चर यही है। लेकिन थीसिस सबमिट कर रहे हो चैप्टर स्कीम के टाइम, यूनिवर्सिटी से एक बार चेक करो कि उनका यही स्ट्रक्चर है ना, फॉर्मेट, वो पब्लिशर का फॉर्मेट एक बार चेक कर लो, यही स्ट्रक्चर है ना। यू मे हैव 1 2 3, अदरवाइज दिस इज द सेम। तो फर्स्ट विल टॉक अबाउट एब्स्ट्रैक्ट। ये सर एक्सेप्ट करूं क्या, अप्रूव करूं क्या डिक्लाइन करूं? डिक्लाइन ना, ओके। आपने कुछ नहीं करना है, योर प्रेजेंटेशन, ओके 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 ओके, चलिए भाई मैं आपको मेरा पेपर भी बताऊंगी, विच वॉज प्रेजेंटेड इन लंदन स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एजुकेशन, इट वॉज प्रेजेंटेड इन IIM कलकत्ता, और ये हैंडी पेपर परसों ही शेयर किया गया था। ये अपने रिसोर्स पर्सन कुलदीप सर का है। मैंने अपने रिसोर्स पेपर्स भी आपको मटेरियल निशिकांत सर ने दे दिया है। ये एक फॉर्मेट है, ये स्कूपर्स जर्नल में हुआ है पब्लिश। अब इनका एब्स्ट्रैक्ट देखो, I have experienced abstract for IIM Calcutta, IIM Bangalore. You won't believe. हम लोग लिखते your abstract should run between 300 words maximum to 500 words. ये ऐसा हम लिखते हैं। लेकिन जब आप IIM Bangalore, IIM Ahmedabad, सेज पब्लिकेशन में अगर आप विकल्प पब्लिकेशन में पब्लिश करना चाहते हो, वो बोलते हैं your abstract should be for 2000 words। 2000 words मतलब पूरा हमारा रिसर्च पेपर हो गया। वो लोग इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड एब्स्ट्रैक्ट। एक्सटेंडेड मींस आप अपने एब्स्ट्रैक्ट में पूरी कहानी बता रहे हो पेपर की। Now, if you want your editor to read your abstract, there are 3 things I'm going to tell you which your abstract should have. Abstract का पहला 2 लाइन should be related to the industry in which you are writing your paper for. अगर एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में है तो वो इंडस्ट्री एजुकेशन के बारे में लिखो। अगर कोई सर्विस सेक्टर के बारे में है तो एयरलाइंस के बारे में है तो उसकी 2-3 लाइन पहले वो इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। फिर आपके वर्ड में स्टैटिस्टिक्स एब्स्ट्रैक्ट में आने चाहिए, वो इंडस्ट्री का रिसेंट स्टैटिस्टिक्स जो आप पढ़ना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं HR का पेपर पढ़ना चाहती हूँ जहां पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग एज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स और समथिंग व्हिच इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स एंगेजमेंट और रिटेंशन। अब टैलेंट एंगेजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ तो आई हैव टू टॉक अबाउट दिस इंडस्ट्री और एंगेजमेंट कौन से टू व्हाट एक्सटेंट इंडस्ट्रीज आर एबल टू हैव रिटेंशन ऑफ द एम्प्लॉइज। इसकी स्टैटिस्टिक्स आपको पहले एब्स्ट्रैक्ट में 2-3 लाइन में बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट लाइन, योर वर्ड हैज टू स्टार्ट विद however, दिस वर्ड हैज टू बी देयर। However, फिर आप अपना गैप लिखोगे। माइंड यू, आपका एब्स्ट्रैक्ट आप लिख पाएंगे ओनली आफ्टर फिनिशिंग योर रिसर्च वर्क। आप पहले ही रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिख पाएंगे क्योंकि आपको ये 500 लाइन में रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट में फाइंडिंग भी लिखना है, आपने आपका मेजरमेंट भी लिखना है, कौन से रिसर्च मेथोडोलॉजी टूल लिखा है आपने, which tools have you done, and you also have to write down what basically the purpose of the research। वो तो आप पहले लिख पाएंगे, लेकिन फाइंडिंग्स कैसे लिखेंगे without doing your research? तो गलती नंबर 1, please don't write down your abstract before you conduct a research. You have to write down the full paper, फिर आप अपना एब्स्ट्रैक्ट लिख पाएंगे। पेपर बनाना कल ऐसी, आई एम सो सॉरी टू से, लेकिन ये ट्रेंड हो चुका है। 4 दिन में कॉन्फ्रेंस है, हम 2 दिन में रिसर्च पेपर कैसे बना रहे हैं? It is difficult to just make paper in overnight. So this shows what is the extent of originality of your work. Unless you had data already collected and you're working on the data, you can make a paper.
नहीं तो एक अच्छा रिसर्च पेपर बनाने में कम से कम 3 महीने लगते हैं. दिस इज आउट ऑफ एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग. 3 months में you can make a beautiful paper which can be presented in school class and getting H index. Your abstract should cover, see I told you, purpose, design, methodology, finding. Purpose ने डिमाइंड किया है. And this is what I have written about the paper. अगर हम ऐसा रिसर्च नहीं लिखना चाहते एब्स्ट्रैक्ट में, हम ऐसा भी लिख सकते हैं. This I had presented a research abstract in IIM Bangalore, जहाँ पे मैंने अपना पढ़ा था कि रेडी टू ईट फूड पैकेट्स के टाइम व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस देयर डिसीजन टू बाय रेडी टू ईट फूड पैकेट. रेडी टू ईट फूड पैकेट्स कौन से हो सकते हैं? बिस्किट, वेफर्स हो सकते हैं, आइसक्रीम्स, चॉकलेट्स. तो ये मैं जब बाय करती हूँ, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मी व्हेन आई बाय दिस थिंग्स? इज इट द ब्रांड? इज इट द अवेलेबिलिटी? इज इट द प्राइस? व्हाट फैक्टर्स आई लुक आउट फॉर? तो ये पूरा आई एम सपोज टू मेरा अभी व्हाट इज माय इंटेंशन? माय स्टडी शुड गिव सम कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्री. इसलिए मैंने बताया द पर्पस ऑफ द स्टडी विल बी रेलेवेंस टू द मार्केटर्स, द रिटेलर्स, टू स्ट्रेटेजाइज द मार्केटिंग एक्टिविटी, टू प्रमोट द रेडी टू ईट पैकेट्स. You see how I've contributed to the industry. So whenever you're making your paper, please remember that your findings should contribute somewhere to any of the sectors of the industry. See, this I have not written, वो पहले वाला पेपर के हिसाब से नहीं, this I have written in a very cut short manner. और यहाँ पे हमने लिखा है कि हमने सर्वे किया है, कितने लोगों से किया है वो सर्वे, क्वेश्चनर से, राइट. हमने नीचे फाइंड आउट किया व्हाट इज द एम ऑफ द स्टडी. और लास्ट लाइन में हमने देखा है कि वी आर स्टडी ऑन वेरियस फैक्टर्स व्हिच कंज्यूमर्स कंसीडर व्हेन मेकिंग बाइंग डिसीजन. फाइनली हमने ये भी बताया है कि हमारा कंज्यूमर कौन सा फैक्टर ज्यादा कंसीडर करता है बाइंग रेडी टू ईट फूड पैकेट. वो फैक्टर हमने लिखा है इट इज इजी अवेलेबिलिटी. और आगे मेरे कंक्लूजन्स पे फिर हमने रिटेलर्स को बताया है कि दीज आर द प्रमोशन स्ट्रेटजीज दे शुड डू इफ दे वांट टू प्रमोट देयर ब्रांड, डिवाइस देयर स्ट्रेटजीज इफ दे वांट टू प्रमोट देयर ब्रांड टू द कंज्यूमर्स व्हाइल मेकिंग देयर डिसीजन. तो आपका एब्स्ट्रैक्ट मिनिमम वर्ड्स के साथ should have 2 lines about the industry, but however you should have your findings and basically how it is going to help the industry. Then this will surely help you have your work done. अब टाइटल होने के बाद योर नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखेंगे. तो वो इंट्रोडक्शन आपका होगा पेपर में, नहीं तो आपकी थीसिस में ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ योर स्टडी व्हिच इज गोइंग टू टॉक अबाउट द इंडस्ट्री. अगर टेक्सटाइल के बारे में बात करो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे. अगर फाइनेंस में है, एचआर में है, तो आप पूरा इंट्रोडक्शन पहले वो इंडस्ट्री के बारे में देने वाले हो. एयरलाइंस है, होटल इंडस्ट्री है, व्हाटएवर सर्विस सेक्टर, यू गोइंग टू गिव इंट्रोडक्शन अबाउट दैट. योर नेक्स्ट चैप्टर इज डेफिनेटली ऑल अबाउट ROL, रिव्यू ऑफ लिटरेचर. अभी रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना कैसे? दिस बेसिक थिंग आई कैन टेल यू व्हिच यू कैन टेल योर स्टूडेंट्स आल्सो एज रिसर्च गाइड. आई टेल माय स्टूडेंट्स वेयर दे मेक अ मिस्टेक. माय स्टूडेंट्स व्हाट दे मेक अ मिस्टेक इज ROL जब देखते हैं डेफिनेटली दे विल डू इट फ्रॉम सम जर्नल्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स एंड सर्च इंजिन्स. अब जब सर्च इंजिन में करते हैं, पेपर डाउनलोड करते एक फोल्डर बना लेते हैं. अब ये फोल्डर बनाने के बाद बस फिर वो व्यू करते हैं स्क्रीन पे. I would always suggest the research guides or research scholars, please ensure that you remove a printout of the research paper. There may be people who are very comfortable to do online reading, but the best benefit part of reviewing a printout is, this is what the researcher should do. पहले आप अपना related ROL जो भी मिल रहा है डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो, फाइल बनाओ. फाइल बनाने के बाद हर एक रिसर्च पेपर लो. वो रिसर्च पेपर पहले तो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, बिकॉज आई सेड द एब्स्ट्रैक्ट विल टेल यू विल गिव यू द जिस्ट. अगर if the abstract is the gist, वहां पे अपने वेरिएबल्स आपने बात किया है तो आपको पता चल जाएगा आगे का पेपर क्या है, आपको पढ़ना है कि नहीं. आगे का पेपर पढ़ने के टाइम इफ यू फाइंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में ये पार्ट बहुत बेहतरीन लिखा है,
इसकी हाइपोथेसिस बहुत बेहतरीन है, रिलेटेड टू माय स्टडी, आई कैन चेक दिस हाइपोथेसिस फॉर माय स्टडी, अंडरलाइन दैट, रिसर्च पेपर के ऊपर लिखिए हाइपोथेसिस सिमिलर टू माय स्टडी। नेक्स्ट रिसर्च पेपर पे जाइए, यहाँ पे उसने जो सजेशंस दिए, वंडरफुल, राइट डाउन, सजेशन गिवन सिमिलर टू माय स्टडी, कैन बी कोटेड इन माय स्टडी। नेक्स्ट रिसर्च पेपर, वेरिएबल्स आर टेकन फ्रॉम दिस पेपर। नेक्स्ट रिसर्च पेपर, मतलब हर रिसर्च पेपर पे आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, ये आपको जरूरत पड़ेगी एट द टाइम व्हेन यू आर राइटिंग योर इंटरप्रिटेशंस, एट द टाइम व्हेन यू आर राइटिंग योर सजेशंस, बिकॉज देयर यू विल हैव टू कोट पीपल कि उन्होंने ये चीज बताई थी अपने रिसर्च पेपर्स के लिए, और मेरी स्टडी उनके अलावा ये दो चीज और बता रही है। सो सी हाउ कॉन्क्रीट आर यू मेकिंग योर स्टडी, कि लोगों का भी आपने ROL बताया है, प्लस आपने आपका कंट्रीब्यूशन बताया है। दिस इज हाउ यू मेक योर पेपर मोर इफेक्टिव एंड योर ROL विल प्ले वंडरफुल रोल। गलती लोग कहाँ पे करते हैं? गलती लोग ये करते हैं, मैं ऐसा रिसर्च टॉपिक लेना चाहता हूँ कि कभी ने किसी ने नहीं किया है, कभी किसी ने नहीं किया है। अरे माय डियर फूल, यू आर डूइंग अ बिगेस्ट मिस्टेक हियर when you are saying that I want to do a research। नहीं, ऐसा होता है, रिसर्च स्कॉलर्स कभी कभी बहुत enthusiastic हो जाते हैं, they become very enthusiastic and they say I want to do a research paper which nobody has done it earlier, but he doesn't know what problem he will face, then where will you find out all the variables, that what should be the dimensions of your study। So there is never a time, nobody has studied this, hence I want to study this। research gap में हम ऐसा लिखते हैं। How is it possible that nobody has studied it? Rather you could say limited study has been done on this, and hence I would like to focus on this। तब जाके आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। तो ROL के बाद गैप एनालिसिस के बाद आपके ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। अब जब आप ROL बना रहे हो, यू कैन टेल ऑलवेज योर रिसर्च स्कॉलर कि पहला पेपर लो, ऑथर कौन है, कौन से साल में है, वो लिखो। नेक्स्ट आप अपना टाइटल लिखो वो रिसर्च ROL पेपर का। नेक्स्ट कौन सी एरिया ऑफ स्टडी है, एंड राइट डाउन द गैप देयर, फॉलोड बाय, एम आई ऑडिबल? यस, फॉलोड बाय वो पेपर ने रिजल्ट्स क्या दिए हैं, आप वहां पे लिख सकते हो। रिजल्ट मींस व्हाट, यू आर सेइंग कि आपका हाइपोथेसिस वेरिएबल्स का रिलेशन क्या आया है, दैट इज योर रिजल्ट व्हिच यू आर डूइंग। यहाँ पे रिसर्च डिजाइन है, रिसर्च डिजाइन इज नथिंग एल्स, लेकिन सैंपल साइज क्या लिया है, सैम्पलिंग टेक्निक क्या है। कभी कभी आप ये सब काम कर रहे हो, आप अपने थीसिस में भी यही लिखोगे और आप इनको कोट करोगे। आप जब अपना डिफेंड कर रहे हो वर्क, दैट टाइम यू विल हैव टू से कि आपने क्यों इतना नंबर लिया है, आपने ये सैम्पलिंग टेक्निक क्यों लिया है। यू कैन ऑलवेज डिफेंड योर वर्क बाय सेइंग ये मैंने नहीं बोला है, ये मिस्टर XYZ ने बोला है, मैंने उनको फॉलो किया है। सो योर क्वेश्चन कैन बी डायरेक्टेड टू मिस्टर XYZ। दैट्स द ब्यूटी ऑफ ROL। You can always save yourself by defending. This is not I saying, madam, these are 4 research papers which have said the same thing. We can definitely even go through this to get your answer. This is how you can use the ROL for defending your work also. When you are following somebody, when you're sample framing ke time, sample techniques ke time. Okay. Next is what tools they have used and the references. ये चार्ट आपके रिसर्च स्कॉलर को बनाना चाहिए when you're making your thesis for your chapter number 2 of ROL। अब यहाँ से आप ये ऑटोमेटिकली उठा सकते हो। देखो यहाँ पे कौन सा भी आपका वेरिएबल्स होगा, तो जब आप रिसर्च गैप कर रहे हो, यू विल से दे हैव स्टडीड दिस 4 वेरिएबल्स फॉर योर दिस पर्टिकुलर respondents। I am studying this 4 variables for these type of respondents। तो this is how you will be differentiating your paper कि ये 4 वेरिएबल्स इन्होंने पढ़े हैं ये सैंपल के लिए, मैं ये सैंपल नहीं, लेकिन मैं ये सैंपल के लिए 4 पढ़ना चाहती हूँ।
For example, somebody must have studied stress management and reasons for factors influencing stress for college going students. ये दिए है. और सर्विस इंडस्ट्री में एयरलाइंस के में देखा है एयर होस्टेस को स्ट्रेस ये रीजन से होता है और उन्होंने डायमेंशंस बताए हैं. मैंने वही डायमेंशंस उठाए हैं लेकिन मैं दूसरे सर्विस सेक्टर में डाल होटल मैनेजमेंट में तो वही वेरिएबल में उठा के मैं ये बोलना चाहती हूँ आई वांट टू टेस्ट वेदर दीज डायमेंशंस आर सेम फॉर होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री आल्सो. स्ट्रेस यही वजह से आता है क्या? So this is how you will be playing with your ROL and you can train your students for the same. Now after your ROL is made, you'll make your gap. Gap के बाद objectives बनाएंगे. I've given you some examples here how important every word in objectives will play. When you talk about importance, I really cannot now explain it because we already time up 7:35 हो गया है. But when you're using the words in your research objectives, every word will play an important role, and your objective will decide which technique can you adopt for your data analysis. So please be fast. Yes, Nishikant sir. So your objectives has to be well defined. I'm giving you some hints here. The words, if you use this, these are the statistical tools that you could apply in order to test your data. Well, ऑल फिर फॉर्मेट बनाने के लिए आप अपना डेटा कलेक्ट करोगे, फिर उसको प्रोसेस करोगे एंड आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इंटरप्रिटेशन कैसे लिखना है. और इंटरप्रिटेशन होने के बाद फाइंडिंग्स इज गोइंग टू बी अगेन द सेम थिंग जो स्टैटिस्टिक्स बताते हैं. कंक्लूजन सजेशंस दैट इज टू कम फ्रॉम योर ओन माइंड व्हाट आई कुड टेल यू अबाउट इट. ओके, लास्ट थिंग इज ऑल अबाउट आई शो यू दिस लास्ट पिक्चर. दिस इज माय लास्ट स्लाइड. लोगों से इंटरेक्ट करने से हमें बहुत नॉलेज मिलता है. It is very important that you get associated with various associations. ये हमने केयूर सर को बताया था और ये मैं आपको भी बता रही हूँ. If you get in associated with various associations, you will come in across various people. They also can help you and suggest you various journals and give you guidelines as to how to write research papers. So it is always advisable to become members of various associations also, where you come across various people who can help you to write on better things. I think as for now, I can stop with my presentation, and if any questions, then we could have ahead. But next time, given a chance, and I could teach how to identify variables, how to structure paper, and everything. Over to you, Nishikant sir. Thank you. Thank you, Poonam ma'am. If the participant has, and I am very thankful that you have completed well within time. Now I will request any participant, if they do have any queries, please put on the chat box so that ma'am can answer your question. Thank you so much. Ma'am, you were busy. This was a lot from them. It was excellent session. सर मैंने यहाँ पे ये टाइम कोई jargons यूज नहीं किए. I went to very basic level. Yes. I know. यहाँ पे कोई स्टार्टर्स भी हो सकते हैं वो लेवल पे, लेकिन लेवल बेसिक से आगे जाने के लिए एडवांस. It is only very informative, well prepared, and also I request then our chairman, IE Thane branch, Arvind sir, to propose formal vote of thanks. Yes, very good evening to all of you. I believe that today's session you people have enjoyed. The resource person we have selected for the today was Dr. Poonam Thakkar. He is very good friend of Nishikant, Kuldeep, and I believe that she is member of Indian Accounting also. Yes, Poonam? Yes, sir. Yeah, very good, very good.
right from beginning till end, very nicely you have covered the report writing all aspects where even a beginner can understand. Because our today's participant, it is a mix, the crowd, where some are PhDs also, some they have already written the article, some they are just about to start their journey. But the way you have carried all the participants with you, and still the 96, the audience are there, the participants are there, and at the end, this is the highest statistic. I tell you, this is the highest statistic of 739 right from our workshop started till today. So अच्छा it means that you have keep connected all the participants very nicely and within a very short span of time at a very young age, you people have nourished yourself with a very fantastic knowledge. Thank you. People really the jewel of the University of the future researcher, the budding teachers, and the incoming the participant ones who are already in the MCOM, they are aspiring to become the teacher. These the young vibrant mind will definitely learn a lot of things from you, and one day they will also keep one session where the resource means where the resource person will share their journey, the right from their day one to now that what problems they have faced and they have this thing, they have gone with come up with the X, the what problem will encounter, the Y may not encounter. Because every teacher, every researcher, every, we can say, budding teacher, those who want to grow in the arena of the Google and globalization, I believe that in future we will identify some very good talent that right from scratch till the very, we can say, remarkable level they have achieved in the University of Mumbai. Because for that, I believe that the participant will be those people who have their career of 1 year or means they have experience of 1 month, 2 months, 1 year, 2 years, what problems they are facing, how they can, we can say, flourish. So whatever the text we have applied to come in this stage. So you all the people, those who want to share their knowledge, very soon in the coming period, we will also keep the experience sharing session. Very influential teachers, the good teachers, the good researchers we will keep. I believe that you people will come together. So every time we will give the challenge to you people. You have to come out from your comfort zone. There is no syllabus for the real life problem. The problem is unique, the solution is unique. So that uniqueness is to be developed, that uniqueness we can understand, we can comprehend, and we will deal with the many people. We have to understand the people, who is right, who is wrong, who is plus, who is minus. So that's all we have to do. I heartily thank all our participants of the Indian Accounting Association life members, the teachers from the Ismail Yusuf College, the teachers from the Thakur College, and the host, the Indian Accounting Association, because I am the part of the Indian Accounting Association, but ultimately it is the host, is the Indian Accounting Association, its governing body is the host, and we can definitely the Nishikant had played a very good role, the Gurdeep have played a very bright role, and all the resource person from the day one till day, they have shared their ocean of information among the participants, and I am very happy to see that day by day from
from day one to last day, the participation of all the audience is at its peak level. And today is the last session of the resource person. On Monday, we people will again meet at 5:30 till the 7:30. Just to have the dialogue, that is the question and answer dialogue. Whatever questions you have, you people in mind, even the resource person, they can also join. You can also ask, because see, what happened from day one to the last day, the total 6 sessions were held. Every resource person, by the virtue of their experience, whatever they have got, the questions which they have got from the participant, they have the reply. So now the resource person, they don't know what answer earlier resource person have given to a specific question which is being raised by the participant. So there should not be any ambiguity, there should not be any dual opinion on a particular issue. So what we want, the organizers of the Indian Accounting Association, Ismail Yusuf College, and the Thakur College, that you people have at least means more than 24 hours, means working 24 hours, where you people can sit with a pen, you can identify the question right from beginning till end. If you are a guide, you will be having a question, the higher level of question. If you are just a PhD, then the question will be of next journey question. If you are a research scholar, then the nature of your question will be different. If you are about to enroll for the PhD, then your question will be different. And believe it, whatever questions you people will ask, myself, the Nishikant and Kuldeep, we three people will share the dais, and whatever knowledge is given by Almighty to us, the experience we have got with the team, individual question. It is a journey. It is a journey where everyone has to travel with reference to the knowledge which they have, the need what they have, the desire what they have, the knowledge what they have, what they have, and what is their priority. Because my question may not, my answer may not suit you, because the question and answer may differences suit you. Organize the very definitely. We have one session at the where the area selected security issues all the participants. So you people can take benefit, and after 7-8 days at Mittal start one session for divine for posting, where the resource person will be our the own member and my US member and the Indian Accounting Association accountant, master accountant, Dr. Sanjay Sonam is an associate professor at one of the brilliant resource person, and we have a target of at least the 5,000 participants, and it may cross to 50,000 also. Our target is 5,000, but it may cross to 50,000 also. So I believe that you people should also participate, and whatever platform we people have created, you keep watch over it, and in the coming period, in the COVID period, we will come out with a very, very novel idea. The certificate, listen all the participants, at least you give us the one day to analyze the data.
who have attended the program on first session, second session. So those who have attended all the sessions, they will get the participation. Means the course completion, the session. Those who have attended 2, 3, 5 sessions, they will not get the course completion session. They will only get the means they have already got the individual session certificate. आपको कल मिलेगा, and we will also try to give you the certificate for the panel discussion what you people attend with. Okay. Register Now the and mic the is end of over the to you. all 96 of the something else earlier. Thank you, sir, for formal vote of thanks. Now I Thank will. you, sir, so much. Thank Nishikant sir and Arvind sir to give me this platform to impart a little of knowledge what I have with the audience. I really enjoyed the session and looking forward for the interactions too. Thank you so very Thank much. you, everyone. Your yesterday's certificate will be available after some time, and today's certificate and course completion certificate will be giving you on Monday. As every day you are getting certificate on the next day. Similarly, here also your today's certificate will be given to you on Monday. वो अपना वीडियो स्क्रीन